Pain, Anita ma'am. Okay. Nerve problem. Okay. So I think there is a lot of pain. 2023, beginning of the year, nobody wants to live in pain. Okay, abhi aaya, knee pain, rheumatic arthritis, again knee pain. So knee pain has become a common problem, it seems. सबको आजकल गुर्दे दुखते हैं. Be it 30s, be it 50s, be it 70s. जो आगे disease of the oldies कहलाता था, today it is the disease of everybody, the young as well as the old. So anybody wanting to know the reason and how to get out of it? I'm sure आप सभी लोगों ने काफी सारी चीजें try की है, and you're looking for some natural methods, but are we ready to work on ourselves? Yes or no? क्या हम ये resolution ले सकते हैं 2023 to work on ourselves dedicatedly? Then I would like to open up Ashtang Chikitsa for you. Can I, if I have your permission? Lower back pain, arthritis, rheumatic arthritis, and the list goes on and on. Okay, thank you so much. Just give me 2 minutes. I will share the screen with you. Is the screen visible? Yes or no? Yes. Okay, so Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. Excuse me. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing the neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found any permanent relief despite having spent a good amount of money on various kinds of treatment. So Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic treatment, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, आज भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So हम क्या कहना चाहते हैं जब हम बोलते हैं structure of the human body? The musculoskeletal system is, yes, one of them. How the structure of the human body is functioning in its best possible way. That's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. अब आते हैं ये वेबिनार आखिर है किसके लिए? जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, कितने लोग रिलीजियसली अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं, राइट? हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको अपने शरीर के ऊपर. So people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa. Freedom from pain and medicine in 2023. So Swami ji will be talking about the Ashta Sharir, जिसके बारे में डिटेल्स में आप स्वामी जी के वीडियो से समझ पाएंगे. So
in brief, the Ashta Sharir is the Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. Now, when we come to the last two parts of the Prakriti and the Vikriti Sharir, so Prakriti is the regenerative factor of our body and Vikriti is the bank opposite, that is the degenerative factor. So hota kya hai? The imbalances that happens between the degeneration and the regeneration. That's where the pain, the inflammations surfaces. So Ashtanga Chikitsa can heal. Of course, the list goes on, but these are the common diseases that we have listed here. Seeing the past participants, knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issue, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. वो क्या बताना चाहते हैं हमें कि हम कैसे अपने करंट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. So I'll just brief you as to how we'll proceed in the webinar. अभी आप सुनेंगे कि कैसे आप अपने करंट सिचुएशन से, from your current health condition, how can you come out of your current health condition naturally, okay, without the use of medicine. कुछ आपको टेक्निक्स सीखना है अष्टांग चिकित्सा में जिससे आपको बाहर निकलने में इजी हो. तो वो आपको स्वामी राज विभू जी अपने वीडियो में बताएंगे कि शरीर कैसे काम करता है और कैसे आप जब तक जड़ तक नहीं पहुंचते, एवरीथिंग इज अ टेम्पररी सोल्यूशन. और जो आपको करना है वो आप खुद अपने सांसों के द्वारा कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल हैव समबडी कमिंग लाइव who has been a participant of Ashtang and how he or she has benefited by it. Next, we will be sharing the program details. Last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to answer all your questions. We will try to take in as many questions as possible. So, फटाफट लिख डालिए chat box में आपके नाम, नंबर और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहा है. Thank you so much for listening to me patiently. Namaste. Over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे
अब पहले डॉक्टर बोलता है, होता आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण होगा, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ. वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा. बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे? आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द का रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtang चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है?
because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I am saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं, आप लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर हॉलीडे के लिए आप हिल स्टेशन में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction.
सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इजंट इट? योर बॉडी डजंट वांट टू टेक इट, लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. योर बॉडी प्यूक्स इट आउट ऑल्सो समटाइम्स. वो बाहर निकालना चाहता है, इट डजंट वांट टू टेक इन. सो रीजनरेशन विल हैपन मोर और डीजनरेशन विल हैपन मोर? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके जॉइंट्स घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. रीजनरेशन नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of प्रकृति and विकृति. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना? You think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है.
at muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना? वहां पे सो डिसअलाइनमेंट, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है. That part is called as caudy. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, caudy, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम. pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapta Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different
densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज़्यादा है. You will see more chronic disease are there. Organ से related disease. So, how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज cannot rejuvenate your organ. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. So how will it happen? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर. एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, breath hold and direction, that hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way.
So how you can rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong, by us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए, and there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. कट से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy
and movement. Function means three things: material, energy, and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called Vata, Pitta, Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy, and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? यू कंट्रोल योर मूवमेंट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ यू कैन नॉट कंट्रोल योर मूवमेंट. तो वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it will be temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after
4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak. In first time he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak, and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say, or what is being said in the world today, can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर.
उसके बावजूद भी आप मूव करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है. You don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, क्या फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा? आपके जॉइंट पे. इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है स्ट्रेस क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak Therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it?
So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. दिस इज द ओनली गैजेट विच इज सेल्फ करेक्टिव और इट करेक्ट्स इटसेल्फ. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. यू एम्पावर योर सिस्टम एंड यूल सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Okay, thank you everyone for listening to Swamiji's recorded video very patiently. Now we'll get to know the program details. हम program के बारे में अब जानेंगे, उनके details क्या हैं, क्या fees है, कौन सी dates है. Everything we'll get to know. And just before that, we have invited one of the participants of Ashtang Chikitsa program. हमने गीता मैम को इनवाइट किया है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल सके. गीता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. आई एम अनम्यूटिंग यू. आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. Yes. Good evening, everybody. I joined this program 4 weeks back, and I had been diagnosed with Churg-Strauss syndrome, where my nerves and muscles have lost their strength. And I have been taking medicines for the past 2 years. But in this 4 weeks which I have started the program, I feel I have got back my muscle strength. All my joint pains have disappeared. I had lost my balance, where I got back my balance, and I had regular headaches which have vanished. I've not been taking medicines, if we do the all the asanas and kriyas taught by Guruji and our mentors, I am sure that all of you will be out of this, whatever you are suffering. There is improvement. You will not get it immediately, but I can feel the improvement within 3 weeks of what I have done. But we have to do it very diligently. And the mentors are excellent. And what the Swamiji explains is extremely good. And all the mentors whom we have met so far are extremely good and very cooperative with all of us. But it is up to us to do all the kriyas according to what they say for us to get better. And I have found a very great change in me, and I'm very confident now. I never feel tired, and I would definitely recommend everybody to join this program. Thank you so much. Thank you, Geeta ma'am, for sparing time and sharing your experience with all the attendees of the webinar. Now, we'll share the details right away without wasting any time. अभी हम जल्दी से प्रोग्राम के डिटेल जान लेते हैं, ताकि स्वामी जी इसके बाद आ सकें और आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें. Give me a few seconds. Let me share my screen so that I can give all the details to you.
Okay. Are you able to see my screen? Give me a thumbs up if you can see the screen. Yes, sir. Okay, great. चलिए जल्दी से जानते हैं प्रोग्राम डिटेल्स। तो भाई निकाल दे, तू अपना यूज कर लेगा। ये म्यूट कर दो नेहा, आवाज आ रही है। Okay, so first of all, this is a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक गाइडेड प्रोग्राम है जो कुंभक मेंटर्स हैं, स्वामी जी द्वारा ट्रेंड है, इनके थ्रू क्लासेस कंडक्ट होंगी जूम ऐप के ऊपर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, प्रोग्राम मॉड्यूल्स, एज स्वामी जी हैज ऑलरेडी टोल्ड इन द वीडियो, देयर आर 3 मॉड्यूल्स, 3 मॉड्यूल्स हैं पूरे प्रोग्राम में, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 कैन बी कॉल्ड एज वात, बैलेंसिंग फॉर वात, पिथ एंड कफ ऑफ द बॉडी। ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज 21 डेज। पूरा जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन बनेगा 63 डेज का बनेगा, 63 दिन का। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम विल बी 63 डेज, 21 डेज फॉर ईच मॉड्यूल। नाउ इट सेज 9 + 1 week. Why 1 week extra? We'll get to know in a short while. Classes, there will be 2 live classes every week, out of which 1 will be the learning or the main class and 1 will be the mentoring or the practice class. हर एक हफ्ते 2 क्लास होंगी, एक क्लास होगी मेन क्लास होगी या लर्निंग क्लास, और दूसरी जो क्लास होगी वो मेंटर्स मेंटरिंग क्लास कहलाती है या प्रैक्टिस क्लास। सो टोटल हर हफ्ते 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? आपने प्रोग्राम फी पे करनी है। यू हैव टू पे द प्रोग्राम फी, दैट इज द स्टेप 1। स्टेप 2 इज टू फिल अप द पार्टिसिपेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म एंड देन यू स्टार्ट योर क्लासेस स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1, देन मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। सभी मॉड्यूल्स कंपल्सरी हैं, कोई एक मॉड्यूल चूज करने की ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पूरे तीनों मॉड्यूल्स को मिलाकर ही कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। टोटल क्लासेस 6 क्लासेस, अगेन इन each module there are 6 classes, 3 learning and 3 mentoring or practice classes. So same is for module 2, same for module 3. सभी मॉड्यूल्स में 6 क्लासेस है, सो टोटल हो जाती हैं 18 क्लासेस। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 18 लर्निंग प्लस 1 कस्टमाइजेशन क्लास लिखा है। आई हैव रिटन 18 क्लासेस प्लस 1 कस्टमाइजेशन क्लास। व्हाट इज दिस कस्टमाइजेशन क्लास? ये कस्टमाइजेशन क्लास क्या है ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। विल गेट टू नो इन अ शॉर्ट व्हाइल व्हाट दिस कस्टमाइजेशन क्लास इज ऑल अबाउट। So total engagement becomes 10 weeks instead of the 9 weeks. Now, batch start date for batch 113, 16 January, Monday at 6 PM. 16 जनवरी 2023 को मंडे, जो कि एक सोमवार का दिन है, 6 बजे ये क्लासेस स्टार्ट होगी और ये बैच नंबर 113 है। मॉड्यूल 1 मेंटर क्लासेस होंगी थर्सडेज को। ये सभी डिटेल्स शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप पर और अभी जूम चैट के ऊपर। ऑल दीज डिटेल्स विल बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन चैट हियर, सो नीड नॉट वरी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द क्लास एक्सपीरियंस लाइक? क्लास एक्सपीरियंस कैसा होता है? जैसा कि आपको पता हो चल चुका होगा, ये लाइव सेशंस होते हैं जूम ऐप के ऊपर। मेंटर्स जो हैं वो सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑल द मेंटर्स इन अ प्रोग्राम, दे वॉच ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू टू कीप योर कैमरास ऑन so that our mentors can give you feedback as to if you're doing the exercise or the kriyas correctly or not. हमारे mentors आपको कैमरा के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं और आपको तुरंत आपको बताते हैं कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Then you get written instructions in English and हिंदी। आपको लिखित निर्देश भी मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और फिर सेशन रिकॉर्डिंग, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग की जाती है। All the live sessions are recorded and made available to all the participants. We'll get to talk about it in detail after some time. काफी चीजें इसमें एक्स्ट्रा होंगी, मेंटल प्रैक्टिसेस होंगी, यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव होगा। दिस डज नॉट मीन इट्स अ डाइट प्लान। ये डाइट प्लान नहीं होता, डाइट पर्सपेक्टिव होता है। यू गेट अ वीडियो फ्रॉम स्वामी जी इन विच ही एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज फूड सो दैट इट डज नॉट हार्म योर बॉडी। कई बार हम खाने को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान होता है, तो इस वीडियो में आपको पता चलता है खाने को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमने खाना है। बट ये डाइट प्लान नहीं है, बिकॉज डाइट प्लान्स काम नहीं करते हैं, बिकॉज सभी का बॉडी अलग होता है। तो देयर इज नो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इन दिस प्रोग्राम। काफी लोगों का ये सवाल आता है, इफ देयर आर एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर नन। यू कैन ईट एनीथिंग, बट
just follow the fundamentals as per this video that will be provided to you. कुछ simple detox processes मिलेंगे, and there will be a lot of knowledge that will be shared with all the participants. आगे चलते हैं. I've mentioned yearly expenses. Just before we talk about the program fee, I'd like to talk about the yearly expenses that you could already be doing just to maintain the disease that you are in. यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हैं जिससे थोड़ा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी जो प्रॉब्लम में है उस पर कितना एक्सपेंस कर रहे होंगे. एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज सो दैट यू, व्हेन आई share the program fee with you, so that you know that how economical this pricing is for the Ashtanga Chikitsa program. I've written doctor's fees. These are yearly figures. Doctor fee, you could be spending 6,000 to 12,000 in consultancy fee in a year. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 you could be spending, and medicines could be costing another 15,000 to 30,000, depending on the kind of medicines you take and the city or the place you live in. And total comes to 33,000 to 72,000 per year. And if you're using allopathy medicines, so we all know about the harmful effects of all those medicines, but so we won't talk about it here so much here. So just to give you a perspective as to the fee of the Ashtanga Chikitsa program, I just wanted to have a comparison, because as human beings we like to compare things, whether you're buying anything else besides the therapy. So that's human. So you'll be able to compare as to how this fee is so affordable. And before I share the program details, it's also important to know who this program is not for. Like Rachna ji shared who this program is for, but again, let me share some things, some points, so that you become clear who this program is for. This is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. Why do we say this? Because since childhood, बचपन से हमें एक दवाई खाने की आदत होती है. कुछ जुकाम हुआ, खांसी हुआ, छोटी से छोटी भी हमें अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है, हम तुरंत एक सिरप पी लेते हैं या दवाई ले लेते हैं. We pop a pill whenever we face even the slightest of problems, cough, cold, and so on. So it's become a habit. So if you're looking for a medicine, this treatment is not about medicine. This treatment is about getting freedom from medicine. Okay, so that's the first thing. And this thing will take time because it's a permanent solution, and permanent things take time. A temporary solution can work right away, but this is a permanent solution. So just wanted to emphasize this point. ये काफी क्लियर करना चाह रहा था मैं कि ये थोड़ा टाइम लग सकता है आपको. और जैसा कि गीता मैम ने कहा, उनको 3 हफ्ते में काफी रिजल्ट अच्छा मिला है, बिकॉज वो प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इज नॉट फॉर पीपल हु आर नॉट रेडी टू वर्क इन देयर बॉडी. अपने ऊपर, बॉडी के ऊपर काम करना होगा. यू विल हैव टू टेक योर हेल्थ इन योर ओन हैंड्स. हम सिखाएंगे, हमारे मेंटर्स आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे, बट अल्टीमेटली इट्स यू हु विल बी डूइंग एंड इन्वेस्टिंग टाइम. अगेन, इफ यू कैन नॉट इन्वेस्ट 80 to 90 minutes every day, then this program is not for you, क्योंकि अपने ऊपर काम करने में आपको समय लगाना पड़ेगा. You'll have to spend time, invest time. We don't say spend time, because when we spend something, you don't get back anything. But here we say investing 80 to 90 minutes. By investment, when you invest something, money or time, something comes back to you. So if you invest your time 80 to 90 minutes every day into this therapy, a good health will come back to you. Okay, so that's why it's an investment. If you are not able to do this, then it's not for you. And this is not for people who are impatient. We understand when you're in pain, when you're into a major problem, health issue, the patience goes down. But all said and done, still, please be patient, because otherwise this won't be for you. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. Majority of people who attend such kind of webinars attend with the intention of picking up some tips. But this webinar is not about picking any tips, because a therapy, and when we talk about a permanent solutions do not come out of a tip that you pick up from. If you're looking for tips, there are thousands of videos on YouTube, thousands and thousands of videos. So if people could cure themselves with tips,
there wouldn't have been any health issues. कोई भी अनहेल्दी लोग नहीं होते. तो ये आपको क्लियर करना जरूरी है. और दूसरा, ये फ्री ट्रीटमेंट नहीं है. काफी लोगों को ये मिसकम्युनिकेशन होता है, बिकॉज आपने एडवर्टीजमेंट देखा, which says a free webinar, but some people misunderstand that this therapy is free. This is a guided program. डेली बेसिस पर आपको गाइड किया जाएगा, हैंड होल्डिंग की जाएगी. So this cannot be free because there's a staff members that you to take care of their salaries. You know, a lot of things go behind the scene to run this program. So this is not a free treatment, and these are not tips. This is a complete solution. आगे बढ़ते हैं. Now, what all you get in this whole program? The first point is Pran Shakti diagnosis for root cause determination. This alone in itself could be worth the whole cost of the program. Why? Because not many treatments are there in the market which can arrive at the root cause. Problem जो health issue है, जो आपका disease है, जो बीमारी है, उसकी जड़ क्या है, और ये कैसे पता लगाते हैं? वो पता लगाते हैं प्राण शक्ति डायग्नोसिस से. थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, कोशिश करता हूं कि ये कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ नॉन मेडिकल डायग्नोसिस. सेकंड, दिस इज एन ऑनलाइन डायग्नोसिस. और आप काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन में कैसे डायग्नोस होता है. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन. यू विल गेट अ फॉर्म, an online form in which you will be asked to do some experiments on your breath and on your emotions, and you have to record those in the form. Second thing that you'll be doing is you'll be writing about your health issues in detail. And the third important thing that you'll be doing, that you'll be submitting in the form, is your selfie photograph, in which your face should be clearly visible, but there have to be no spectacles on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. So when these three things reach Swamiji, he is able to know the root cause or the weak factor. If you paid attention to the Swamiji's video, it talks about the 84 forces. So which force out of these 84 forces has become weak, due to which you landed in your current health issues? This he is able to find through Pran Shakti diagnosis. And then if a diagnosis, if the root cause is found, then a permanent solution is possible. Otherwise, we'll just be experimenting and doing guesswork. So there's no guesswork here. There's a proper diagnosis to find the root cause, and based on this, your therapy will be customized. We'll talk about that in a short while. Then you'll get one main class of 60 to 90 minutes every week. Why 60 to 90 minutes? 60 is the actual duration, and then we take up questions from the participants. So they clarify their doubt, their question. So it extends to 90 minutes. ये 90 मिनट का हो जाता है 60 class duration के बाद. Then weekly one practice class, again 60 to 90 minutes. Online course access for 6 months. What is this online course access? As you must have known by now, all the classes, all the live classes are recorded, and all these recordings will be made available to all the participants through a course dashboard. You'll get a login ID and password to log in and watch the recording of the live classes. And these recordings, this access to these recordings will remain with you for 6 months. After the 10 weeks, when your program is over, after that, you'll still be able to watch the recording for 6 months, which is enough time to memorize all the kriyas by heart. आपको आसानी से वो याद हो जाएंगी. 6 महीने काफी समय होता है. अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-3 महीने में ही आप इजीली याद रख सकते हैं. फिर आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं. Fifth point है videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? Class recording is of the whole duration, 60 to 90 minutes. And what the videos of all kriyas is, these are the separate videos of each kriya. Let's say some kriya takes 2 minutes, some 10 minutes, some 20 minutes. So you don't have to watch the whole recording, spend the 90 minutes to just learn how to do one kriya. You can just watch the video of that particular kriya. Okay. So this is also provided in the course dashboard. Written instructions in Hindi and English, which you can download, take a printout, and follow those written instructions when you're doing your daily kriyas. If you want to watch and learn, that is okay. If you want to read and learn, that is also okay.
Then private WhatsApp group to ask doubts and questions. This is where there'll be daily interaction. As soon as you enroll in the program, you'll be added to the class WhatsApp group where all the doubts, all your questions will be answered on a daily basis. Our mentors are added into these groups. So they'll be guiding you, answering questions, and hand-holding you step by step. 6 days a week. Sunday, the mentors are off. So 6 days a week, you'll be able to ask any doubt, any question in the WhatsApp group. This will be your home for the next 10 weeks. So this is very important. Individual participant progress tracking feedback. We track every participant's progress on a daily basis, sometimes a weekly basis, so that we know that if you're making progress or not. If not, why not? Then we try to find out the reason and give the feedback. Then therapy customization for each participant in the 10th week. Now, if you remember the first point I talked about, Pran Shakti diagnosis. In the 10th week, the therapy will be fine-tuned and customized as per the diagnosis. Okay. Why in the 10th week? A lot of people ask this question, or you also may have this question. Why the therapy is customized in the 10th week? Because the body is first prepared to receive this customization. Just like when you want to plant a seed in the soil, you prepare the soil first. So similarly, the body is prepared in these 9 weeks, and then you get the customized kriyas, and that is different for each participant, because this is done as per the diagnosis. So whatever the diagnosis is, result of the diagnosis are based on this, every participant's therapy kriyas will be customized. Now, 10th and the last point is extended support for 30 days after the program is over. Why this support is done? Because many a times, many participants, they are not, due to their illness or due to any reason, they are not able to attend continuous classes. So you still get 30 days after the 10 weeks are over. So you don't have to worry about if you missed any classes, or because recordings are there, then you get 30 days of support also. All right, the program fee for Ashtanga Chikitsa, which more of you are waiting for, must be waiting for, 14,500 for the complete 10 points that I talked about. Therapy customization, all 18 classes, 1 customization class, then recordings for 6 months, the support in the WhatsApp group, everything included. But like I said, there'll be a special webinar pricing. So let me show you the slide which has that special pricing. Just 6,500 for the complete 9 weeks program, including everything I talked about, the therapy customization, the classes, the 6 months access to all the class recordings, WhatsApp group support, all inclusive. You don't have to pay anything extra. And the diagnosis is also included in this pricing only. Now, how to enroll? You pay the program fee. We'll share the details, the payment link in the WhatsApp group as well as on chat. Then you post the payment receipt in the WhatsApp group that you are a part of. And then you'll get a participant onboarding form on your personal chat, which Neha from our team will be sending you. Then you join the class WhatsApp group. There'll be a link which she'll be sending you for this also. And then you start attending classes to learn Ashtanga Chikitsa, a simple 5-step process. Payment details, they are already shared in the WhatsApp group as well as chat here also. Now, I'd just like to stop here and talk about the super team that we have, which will be at your service. And this is not the super team that we call ourselves, our participants call. And when you enroll and you get to know the kind of support you'll be getting. So that's why it's a super team we have. We have Rachna Shirwal Bothra, she is the program host and the program director. We have Shalini Bhagwat, she's the class manager. Then Ashwani Kumar, he's the manager of IT. Mentors, we have Pooja, Ranjana, Sukesh Raj, R.D. Gupta ji, Soni Chabria ji, Arun Narayana, Nina Rai, Suruchi Goel. We have enough participants. Why so many mentors are needed? Because we want to focus and support each and every participant, because we understand this is an online program. So many people do not feel comfortable. So we need to have proper team in place. That's why we have so many mentors inside the team. Then we have Neha Upadhyay. She is the enrollment in charge. She'll be the person you'll be talking to the most.
before you start your classes or before you enroll. Anil Chauhan, that's me. I'm the WhatsApp group admin. I'll be answering all your questions in the WhatsApp group, because due to limitation of time, Swamiji may not be able to answer all the questions. So if your question is not taken in the webinar just now, please do not worry. Please post your question in the WhatsApp group. I'll be answering all the questions one by one. No question will be remain unanswered. Sometimes it happens that due to a lot of questions being posted in the group, your question may get missed. So please do not feel bad about it. Please post the question again. We have people who just leave the group that you are not answering my question, so I'm leaving. Please do not do that, because otherwise you'll miss an opportunity to attend to this, to enroll and get to know about this beautiful therapy that we have. Himanshu Reddy, he is the technical person. All the videos, recordings, uploads to the course dashboard, the written instructions, he's the person who will take care of this. If your videos are not playing, if your app is not working, so he'll be assisting you and helping you to solve the issues. Then we have Anita. You'll get her number also. In case you want to talk about your health issues or any issue which you're facing inside the class, inside the live class, so you can talk to her directly also. So if you have 3-tier support, the WhatsApp group, the question answer session, then we have Anita ji, you'll get her number. So we've tried to take care of all the places, all the things that can go wrong, and made sure that you do not face any problem with that. And with this, I come to the end of my part. I'll just see if Swamiji has joined. Yes, Swamiji is there. Swamiji, namaskar. I've unmuted you and I'm putting you on spotlight. Thank you so much, Anilji, for the program details. I will now be taking up the questions one by one. Namaste, Swamiji. Good evening. Okay. So here we go with the questions. Need help in, Satya ma'am writes about need help in costochondritis. Costochondritis, what is it? उसका definition क्या है? Just a sec. क्या problem क्या feel कर रहे हैं? Meniscus tear, fatty liver, something related to water. इसका होना चाहिए. When the body dries up, there are certain tissues in the body which gets inflammation. उनको inflammation हो जाता है. और इन्फ्लेमेशन तो सभी को ही हो रहा है. इन्फ्लेमेशन क्या है? जलन जैसा महसूस होता है शरीर के अंदर. ज्वलनशीलता, इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? ज्वलनशीलता. तो कोई सूखी जगह भी होगी ना, ड्राई प्लेस भी होगा, तो आप थोड़ा सा उसमें खुजली करेंगे तो भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. इन्फेक्शन होता है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है. जहां भी रेडिशनेस आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. ठीक है ना, वो भी इन्फ्लेमेशन होता है. जब ड्राई अप होगी बॉडी कहीं से, मसल्स आजकल बहुत ड्राई अप हो रहे हैं. एक रीजन ये है कि द वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज गोइंग डाउन. somebody is asking how can we do कुंभक चिकित्सा. आप ज्वाइन कर लीजिए प्रोग्राम, आप कर लीजिए, बहुत आसान तरीका. जब बॉडी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल तत्व जो है वो रोक नहीं पा रहा शरीर पानी को. इसीलिए आजकल एक अपार्ट फ्रॉम देयर आर सर्टेन कंडीशंस ऑफ डायबिटीज के अलावा भी लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ज्यादा होता है. यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है बॉडी में, शरीर से पानी निकलता है. तो कोई भी अगर आप केमिकल डालेंगे शरीर से तो शरीर डिहाइड्रेट होता है. हाँ, एक तरीका मैंने बताया डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर में केमिकल जा रहा है. तो वो केमिकल को शरीर बाहर फेंकने की कोशिश करता है. कैसे फेंकेगा? पानी में मिक्स करके फेंकेगा, और तो कोई तरीका नहीं है. तो आप कितनी गोलियां खाई आपने बचपन से अभी तक, और रोज तो खाते हैं लोग ना. मैं तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि 15-16 गोली रोज खाते, और मतलब काम नहीं बचा लाइफ में, तो वो वही टॉपिक होता है उनका बात करने का.
अरे मैंने वो गोली नहीं खाई, वो गोली नहीं खाई, मुझे इतनी गोली खानी होती है, ये वो। तो इतनी गोली आप खाएंगे, आपका शरीर बना तो नहीं है गोलियों के लिए। हाँ, इज योर बॉडी डिजाइन फॉर केमिकल्स? हाँ, कभी कभी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला करें, सस्ता है ना डीजल। उससे भी सस्ता क्या, केरोसिन। केरोसिन डाल के चलाओ, सबसे सस्ता पड़ेगा ना। नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि वो इंजन बना डिजाइन नहीं है केरोसिन के लिए, डीजल के लिए। मगर जब हमारा शरीर की बात आती है तब ये समझ कहां जाती है? वेयर डज दिस कॉमन सेंस गो? आपका शरीर भी तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं है, मगर इसमें डेली डाले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डाले जा रहे हैं। अच्छा, जब भी आप केमिकल डालेंगे आपका शरीर तो फेंकेगा उसको, भाई डिजाइन नहीं है तो बाहर निकालेगा, रिस्क में आ जाएगा। बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है, क्यों एंजाइटी हो रही है? आप शरीर को रिस्क में क्यों डाल रहे हो, ये बताओ ना। एंजाइटी तो होगी ना जो रिस्क में डालेंगे। आप गोलियां खाएंगे तो एंजाइटी होगी, हार्ट अटैक होगा, हार्ट डिजीज होगा। तो हार्ट डिजीज 100 साल पहले कितने लोगों को था? अपने दादा को याद कीजिए जरा, या उनके एक जनरेशन पीछे परदादा को, उनको था क्या हार्ट डिजीज? डायबिटीज, थायराइड इश्यू, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कैंसर, कुछ भी नहीं था। आज ही क्यों हो गया? क्योंकि ये रिस्क बढ़ा रहे हैं हम शरीर का। तो पहली बात, रिस्क बढ़ाएंगे तो शरीर पानी में उसको घोल के बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा शरीर। कोई भी दवाई, हर एक दवाई आपको डिहाइड्रेट कर। ऊपर से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम लोग कुछ दवाई दी जाती है हमको, जैसे कहते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऐसे नाम भी रखते हैं ना। इलाज तो किसी का नहीं करते, नाम इतने बड़े बड़े रखते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो ठीक नहीं होता ना, मगर दवाई रोज खानी है आपको, तभी तो पैसा बनता है। देखो, बहुत कमाल का मॉडल है पैसा बनाने का। तो वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, क्या करता है? आपके शरीर में से पानी कम करता। हाँ, डायूरेटिक कहते हैं, एक दवाई लेते हैं डायूरेटिक, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड। तो वो लेंगे तो आपकी पानी कम हो जाएगा। कोई भी एंटीबायोटिक खाएंगे शरीर में डिहाइड्रेट होता है शरीर। तो आप गोलियां ले रहे हैं तो डिहाइड्रेट हो। दूसरा, आप अपना भोजन नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेट होगा। तो आपका भोजन क्या नहीं है? जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक फूड आपका नहीं है। तो आप क्या खा रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक फूड। अब शरीर इसको भी रिस्क की तरीके से लेता है, क्योंकि जो आपका भोजन नहीं है वो शरीर के लिए रिस्क है। तो उस वजह से भी हो रहा है। ऊपर से अब क्या होगा? मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म खराब होगा, डायबिटीज होगी, हाइपोथायराइड हो जाएगा। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन खराब होंगे। ऑर्गन खराब होंगे तो अब कर लीजिए, अब और दवाई खाएंगे, और दवाई खाएंगे, और डिहाइड्रेट होंगे। ये विषय, इसे कहते हैं विशियस सर्कल या साइकिल। फंस गए तो फंस गए। तो पहली बात, दवाई खा के कोई ठीक नहीं हुआ, मगर ठीक नहीं हो रहे तो और दवाई खा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत जल्दी शरीर खराब हो जाता है। लाइफ बची रहती है मगर लाइफ खराब हो जाती है। ठीक है, दवाइयां, फूड। तीसरा कारण क्या है? आपके शरीर का पानी नहीं रहने का। अच्छा मुझे बताइए, आपके आसपास में कितने ताल, तालाब, सरोवर, कुएं, नदी, नाले कितने हैं? साफ पानी का कितना है? कोई तालाब, सरोवर है आपके आसपास में? नहीं, वो तो सारे भर के उस पर बिल्डिंग खड़ा कर दिया। जमीन के नीचे पानी कहां है? कितना नीचे चला गया वाटर टेबल? 30 फीट हुआ करता था, 25 फीट, 20 फीट हुआ करता था, वो अभी कितना है? 5,000 फीट, 8,000 फीट, 10,000 फीट। पानी तो आपसे दूर चला गया ना। अगर पानी आपके नजदीक होगा तो आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, अगर पानी आपसे दूर चला गया तो आपका शरीर सूखेगा ना। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शरीर की, बॉडी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम हो चुकी है। बीमारी के कारण किसी जगह पे पानी जमा हो रहा है मगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, काम इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके शरीर में पानी, ये मान के चलिए। तो इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो क्या क्या होंगे? आपके मसल्स ड्राई हो जाएंगे, सूखेंगे। आपकी बोन डेंसिटी जो है वो पोरस हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके ऑर्गन फंक्शन ठीक नहीं होगा। एंजाइटी होगी, मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे,
हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक, हार्ट रन किस पे करता है? जल तत्व के ऊपर रन करता है, उसे कहते हैं दक्षिणाग्नि। आपका शरीर का जितना जल तत्व होगा उतना स्ट्रांग हार्ट होगा आपका। तो जल तत्व कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं हो पाएगा। यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थायराइड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैंसर भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। प्लस इम्यूनिटी का फैक्टर वीक हो गया। तो कहने का मतलब, अब मुझे बताइए इसकी दवाई बताइए जरा। इतनी सारी बातें तो कर ली हमने, इलाज तो देखना पड़ेगा ना भाई। बातें तो गूगल सारा दिमाग में डाल दीजिए तब भी इलाज नहीं हो रहा ना। कहते हैं विज्ञान इतना तरक्की कर लिया है कि सबको बीमार कर दिया। मतलब क्या तरक्की, क्या कमाल की तरक्की। तो इलाज क्या है? इलाज क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको रोकना पड़ेगा ना पानी को शरीर में। सीधी सीधी भाषा में समझते, आप लोग समझदार लोग हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा पढ़ लिख गया, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। मगर आप भारतीय हैं तो समझदार हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। रोकना पड़ेगा शरीर में पानी को। रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? रोकना के लिए आपको रोकना पड़ेगा ना, कुछ सांस को रोकना पड़ेगा। इसी को कुंभक कहते हैं। कुंभक बहुत बड़ा आयाम है, उसमें से एक पक्ष बता रहा हूं मैं आपको, एक पार्ट बता रहा हूं। सांस को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, मगर आपकी मेमोरी को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, आपके प्राण को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, आपके ऑर्गन फंक्शन को रोकने को भी कुंभक कहते हैं, मतलब उसको सही करने को भी कुंभक कहते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका कि आपको, आपकी रोकने की क्षमता कम, शरीर के ना जोर लगाने की क्षमता या होल्ड करने की क्षमता कम हो गई। कैसे करेंगे? होल्ड करने की क्षमता के कम हो गई, कैसे पता करेंगे कि आपके होल्ड करने की क्षमता कम हो गई है? होल्ड करके करते क्या है आप? तो एक काम करें, अपनी उंगलियों को फंसाएं, जरा ऐसे फंसा लीजिए और जरा खींचे, खींच के रोक लें, खींच के रोक लो। पीछे देखो, सांस रोका है। आपके शरीर का कोई भी एक्शन कितना अच्छा है, ये डिपेंड करता है कितनी आपके सांस रोकने की क्षमता है। आप कितना, आपके शरीर में जान है, जोर है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके शरीर के, आपके शरीर में रोकने की या ब्रेथ होल्ड करने की क्षमता। एक तरीका ऐसा है जिससे हम समझ सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे कि आप किसी पार्टनर को बोलिए, आप खड़े हो जाइए, अपने पार्टनर को बोलिए कि धक्का दें आपको। आप कितनी जल्दी बैलेंस, कितना अच्छा बैलेंस बना के रख सकते। ये रिकवरी स्ट्रेंथ है आपके शरीर का। ये भी आप देखेंगे सांस रोक के कर, ये भी आप बैलेंस भी सांस रोक के बनाते हैं। तो अगर आपके स्ट्रेंथ वीक हो गया है, होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो गई है, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कोई तरीका नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है इसके लिए। कोई भी अच्छा भोजन करके आप ठीक नहीं हो सकते, ये भी मैं आप बात में बता रहा हूं। अच्छा भोजन करना अच्छी बात है, मगर जान वापस नहीं आएगी, बल वापस नहीं आएगा, क्योंकि अच्छा भोजन करके मैराथन नहीं दौड़ जाएंगे आप। तो बल के लिए आपको कुंभक करना पड़ेगा। पानी नहीं रुक रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत सारे आंसर ना एक ही बार में मैं दे रहा हूं ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चन सब पूछने की जरूरत ना पड़े। कोई भी चीज रीजनरेट, मसल खराब हो गए, वाटर रिटेंशन नहीं है, तो बताया आपको होल्डिंग कैपेसिटी वाटर की बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ाएंगे? सांस रोक के होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। वाटर रिटेंशन मतलब वाटर होल्ड करना आपके शरीर में शुरू हो जाएगा, वाटर रिटेंशन चला जाएगा। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? शरीर, एक सिंपल, आपका हाजमा कितना तेज है, यानी आपका डाइजेशन कितना स्ट्रांग है। एक तरीका उसको समझने का है। वो कैसे पता चलेगा? आपके शरीर में गर्मी कितनी रहती है, टिकती है, इस पे डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना? ऐसे मान के चलिए, मैं आपको सिंपल भाषा में और समझाऊं। एक जवान इंसान को टच कर दिए, एक बूढ़े इंसान को टच करिए, क्या फर्क नजर आएगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। गर्म खून होता है ना, ऐसा बोलते हैं, गर्म होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक हीट ज्यादा है। यानी मेटाबॉलिज्म के साथ में आप इसको जोड़ के देखिए, इसे गारे पत्ता अग्नि कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं, उसके अंदर ज्यादा है, बूढ़े में कम है। ठीक है? आप सांस रोकिए थोड़ी देर तक, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, है ना, 5-7 मिनट करो, आपको क्या पता चलेगा? आपका शरीर गर्म हो जाए। यानी कुंभक ही वो तरीका है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए। मेटाबॉलिज्म से आपके शरीर में कोई भी चीज बनती है, घुटने घिस रहे हैं ना,
बन क्यों नहीं रहे? बनना भी तो चाहिए उनको। मसल सूख रहे हैं, बन क्यों नहीं रहे? खराब हो रहे हैं, बन क्यों नहीं रहे? बनना भी चाहिए। नर्वस सिस्टम जो है वो सेंसेशन उसकी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डीजेनरेट हो रहा, रीजनरेट नहीं हो रहा, बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? मेटाबॉलिज्म खराब है। मेटाबॉलिज्म कैसे ठीक होगा? कुंभक से ठीक होगा। ठीक है, अगर आपको रीजनरेट करना है, घुटने सही करने हैं, हड्डी घिस गई कहीं पे, जॉइंट घिस गया है, बीच में गैप आ गया है, वहां दोबारा बनाना है तो कुंभक करना, मेटाबॉलिज्म ठीक करना पड़ेगा। पानी होल्ड होगा तो सेल्स अच्छे से बन पाएंगे, क्योंकि उसी में काम होता है, तो उसके लिए कुंभक करना पड़ेगा। बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, चलने की ताकत नहीं हो रही, चल नहीं पा रहे, जोर लगाना पड़ रहा है ज्यादा, क्या करना पड़ेगा? ताकत वो बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कुंभक करना पड़ेगा। दवाई से ये ठीक नहीं होते। आपके आसपास में एग्जाम्पल है, बहुत है, अब तो देख के आंखें खोल लीजिए। तो कुंभक करेंगे तो ये चीजें ठीक होंगी, है ना। बड़े बड़े शब्द जो होते हैं ना, वो डाल के कोई ठीक तो हुआ नहीं ना। इतना बड़ा शब्द बोला ना, तो मेरे को ये प्रॉब्लम है, ठीक कौन हुआ? कोई भी नहीं। तो ये कोई ना, आपको अपनी बुद्धि खोलिए। इतने बड़े शब्द बोलेंगे, आपको लगेगा कि अरे कुछ बड़ा भयंकर चीज बोला हुआ। अरे भयंकर नहीं, इसका बहुत आसान तरीका है ठीक होने का, मगर आप फंस गए उस चक्कर में। तो आप भी जानते हैं कैसे ठीक होना है ना। हम आपको एक मेथड, तरीका बता रहे हैं, सही उसको एक ऑर्डर में बता रहे हैं, एक मॉडल, एक मॉड्यूल बना के सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Triveni sir talks about rheumatic arthritis. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर समझते हैं, ठीक है। ऐसा नाम बोला, और rheumatic arthritis, वो आखिरकार क्या बोलेंगे आपको? अरे ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ठीक नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं। आप सब लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोग भारतीय इंडियन हैं, आप लोग समझदार हैं। वो अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ा साइड में रखिए, वो जो फिरंगी पढ़ाई की है ना आपने, वो साइड में रखिए। आप लोग सब समझदार हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। एक एक जगह है जो पोल्यूटेड है, धुआं निकल रहा है, ट्रक, एक बड़ा ट्रक है, काला धुआं दे रहा है, आप वहां से गुजरते हैं, आप सांस कम लेंगे ज्यादा लेंगे? ऑब्वियसली कम लेंगे ना, नाक पे रुमाल रख लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, कम लेंगे सांस। शरीर ऑटोमेटिकली सांस कम लेगा जहां पॉल्यूटेड होता है, ठीक है ना, सांस कम लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपने जितना कुछ पढ़ा होगा उसमें एक चीज सबने पढ़ी होगी कि हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है, हाँ है ना? ये तो सबने पढ़ा होगा। अब मुझे बताइए कि आपका शरीर सांस कम ले रहा है ज्यादा ले रहा है? ऑटोमेटिकली कम ले रहा है, क्योंकि आपने वातावरण प्रदूषित कर दिया, क्योंकि आपने दुनिया का डेवलपमेंट फिरंगियों के हाथ में छोड़ दिया, जो सबसे बेवकूफ प्रजाति है। पूरी पृथ्वी ने इतनी बेवकूफ प्रजाति देखी नहीं जितने कि ये फिरंगी गोरे हैं। इन्होंने एनवायरनमेंट खराब कर दिया, सबका जीना मुश्किल कर दिया अपने लिए, थोड़ा पैसा बनाने के लिए। तो आप तो सांस कम ले रहे हैं। अच्छा, आप जितना सांस लेते हैं उतना शरीर में कोशिकाएं बनती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कल से ज्यादा सांस लेने लग जाएं तो ज्यादा बनने लग जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए, हर चीज का एक बैलेंस होता है। तो लेकिन फंडामेंटली बता रहा हूं, सीधे तरीके से बता रहा हूं, आप लोग भी समझ सकते हैं। आपकी सांस जितनी अच्छी ईज में गहरी होगी, उतनी कोशिकाएं बनेंगी, रीजनरेशन होगा आपकी बॉडी में। जो कोशिकाएं मर रही हैं, जो सेल्स मर रहे हैं, जो जॉइंट्स घिस रहे हैं, वो वापस बनेंगे, वहां पे सेल्स वापस बनेंगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई? एक बात समझ में आ गई? वन थिंग यू अंडरस्टूड। अच्छा, अंग्रेजी में भी बोलना है? ओके, सो इनहेलेशन, ना इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दो चीजें हैं ना आपके शरीर में, दो काम करते हैं। इनहेलेशन क्रिएट्स रीजनरेशन, इनहेलेशन से कोई चीज बनती है। एक्सहेलेशन एक्चुअली रिलैक्सेस यू, डिटॉक्सिफाइज यू। एक्सहेलेशन से आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, ठीक है। अब इनहेलेशन आपका, इफ योर इनहेलेशन इज नॉट प्रॉपर, द बॉडी वांट्स टू सर्वाइव और नॉट। अगर इनहेलेशन आपका ठीक नहीं है तो क्या होगा आपके शरीर में? इन योर बॉडी द फ्लो फैक्टर विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। जो आपके शरीर में फ्लो है वो भी ठीक नहीं होगा। हार्मोन फ्लो,
फ्लूइड फ्लो, ब्लड फ्लो, लिम्फ फ्लो, बहुत सारे फ्लो होते हैं आपके शरीर में, फ्लो होता है। वो कैसे ठीक होगा? इनहेलेशन ठीक होगा तो फ्लो ठीक होगा। इफ द फ्लो इज नॉट करेक्ट देन द बॉडी विल ट्राई टू करेक्ट इट, यस और नो? ऐसे एग्जांपल दीजिए। एक और एग्जांपल, जस्ट वन विथ वन मोर एग्जांपल, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियर। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। सी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट यू गेट इट राइट। मेरी जिम्मेदारी क्या है? आपको समझ में आए। फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स करेक्टिंग योरसेल्फ। ये जिम्मेदारी आपकी है। नाउ सपोज अ पैथोजन गोज इनसाइड योर बॉडी, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन होता है आपको, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आपके शरीर में। वायरस सबको मालूम है, कोरोना तो सब जानते हैं। कोरोना गोज इन योर बॉडी, आपके शरीर में कोरोना गया। हाउ विल योर बॉडी किल कोरोना? बॉडी कोरोना को कैसे मारेगा? हीट बढ़ा के। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इफ इट नीड्स टू बी किल्ड, जस्ट गिव अ लिटिल हीट, थोड़ा गर्मी दे दो, मर जाता है। तो कोरोना होते ही आपका शरीर क्या करता है? व्हाट योर बॉडी डज? इट क्रिएट्स फीवर। होता है कि नहीं? एवरीबॉडी, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस, एटलीस्ट नॉट, इफ नॉट कोरोना देन एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है? बॉडी गर्म हो जाती है ना, फीवर कहते हैं उसको। योर बॉडी गेट्स इनटू हीट, व्हाई? द बॉडी वांट्स टू किल द वायरस। और आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? यू टेक अ पैरासिटामोल ना, डोलो, क्रोसिन, कुछ खा लेते हो। यू पुल डाउन द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। वो ठीक करना चाहता है आपको, आप ठीक नहीं करने देना चाहते। इफ योर बॉडी क्रिएट्स लूज मोशन, यू विल ब्लॉक इट, है ना? उल्टी होगी तो फिर आप उल्टी की दवाई खा लेंगे। आप शरीर को काम नहीं करें, यू डोंट वांट द बॉडी टू वर्क, ठीक है ना? दीज आर क्रिमिनल एक्ट्स, बट यू कॉल इट ट्रीटमेंट। अगर क्रिमिनल चीज को अगर आप ट्रीटमेंट बोलने लग गए तो भगवान भी अब बचा नहीं सकता कि ह्यूमैनिटी को। सो दिस इज पेन होगा, इफ योर बॉडी क्रिएट्स पेन, सो दैट you should get to the root of why this pain is, what is causing this pain, why you are getting this pain. उसको ट्रीट करने के बजाय आप पेन को ही काट देते। कहते हैं हमें रेड लाइट फॉलो नहीं, रेड लाइट को ही तोड़ दो, इसको आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। सिर पे बैठाते हैं ट्रीटमेंट बोल के। अपने शरीर को क्रिमिनल बनाने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। आपने क्रिमिनल बना दिया अपने शरीर। लाखों सालों से, फॉर लैक्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, दिस बॉडी हैजंट क्रिएटेड एनी डिजीज. It is only in the last 100 years we are just torturing our body. हम इस शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं। इस टॉर्चर को हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। वी हम एडवांस मेडिकल साइंस जो बॉडी को टॉर्चर करने को ट्रीटमेंट कहते हैं। एनी मेडिसिन, कोई भी दवाई आपके शरीर में काम कैसे करती है? बाय रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, आपके सेलुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। आपको एक खराब एग्जांपल दे रहा हूं मगर ये जरूरी है, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, व्हाट यू आर डूइंग टू योरसेल्फ। एक लेडी को अगर रेप करना चाहे, वो ना करने दे, तो उसको बेहोशी की दवाई या ऐसी कोई ड्रग दे दो, और उसको जब उसके हाथ पांव काम ना करे फिर उसका रेप कर लो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवर बॉडी, और इसको हम ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। साइंस का ठप्पा लेके कुछ भी लगा लो। पहले रिलीजन का ठप्पा लेके लगा के करोड़ों लोगों को मार दिया, अब साइंस का ठप्पा लगा के अरबों लोगों को मार रहे हैं। तो सबसे बेवकूफ प्रजाति कौन है? फिरंगी प्रजाति। दे डोंट अंडरस्टैंड लाइफ, दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। हमारा साइंस चुराया, अपना ठप्पा लगा लिया, ये यही काम करते हैं। तो आपका शरीर खतरे में आएगा तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये बात बताए। To protect itself. Maybe you don't want to live, but your body wants to live. Yes or no? Maybe you can kill yourself. ना गोली मार लोगे, फांसी लगा लोगे, but the body never tries to kill itself. It always tries to prevent itself, protect itself. शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है हमेशा। तो इम्यूनिटी बढ़ाएगा। इम्यूनिटी बढ़ा के फिर करेगा क्या? खतरा तो है नहीं, शेर तो है नहीं सामने, लड़ना है, भागना है, ऐसा कुछ तो है नहीं। रिस्क आपने कैसा क्रिएट किया? कांस्टेंट रिस्क। शेर आएगा तो लड़ोगे, भाग जाओगे, जो भी बच जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ तो होगा।
पर यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, लगातार कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट रिस्क, कांस्टेंट रिस्क ऑफ मेडिसिन, कांस्टेंट रिस्क ऑफ फूड, कांस्टेंट रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल, कांस्टेंट चल रहा है। अब इम्यूनिटी बढ़ेगी भी तो ठीक क्या करेगी आपके शरीर में? ये तो कांस्टेंट रिस्क है। तो ये बढ़ती है, नीचे होती है, फिर बढ़ती है, फिर नीचे होती है, फिर उठती है, फिर नीचे होती है। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा पक्ष है रीजनरेशन, मैंने बताया इनहेलेशन एक्सहेलेशन। इफ यू लूज द बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टिंग योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आपका कुंभक अगर वीक हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन बिगड़ जाएगा, बिकॉज योर कुंभक इज होल्डिंग योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन राइट। तो अगर ये हो गया, रीजनरेशन डीजनरेशन का इंबैलेंस होगा, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके शरीर में कोई चीज बन नहीं पा रही, जिसकी जरूरत है वो मिल नहीं पा रहा, जो चीज खराब है वो अब निकल नहीं पाएगी। भाई अनाज आया नहीं आपके घर में, तो घर में जो भी सड़ा गला वो भी नहीं फेंकते ना। तो रीजनरेशन डीजनरेशन दोनों का इंबैलेंस होगा, दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और भी मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को मैं कई तरीके से समझा सकता हूं, बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी क्लास। यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं है ना, मैं कितना भी समझा दूं आप ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना ठीक। अब सारा गूगल दिमाग में भर लीजिए, फिर ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ठीक। यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर बॉडी, गेट द फंक्शंस राइट, गेट द स्ट्रेंथ बैक। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, तीन चीज आप शरीर में लेके आइए। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, दिस इज ऑल देयर इन द मॉड्यूल। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, तीन चीज लेके आइए। रिदम को भाव कहते हैं, बैलेंस को राग कहते हैं, स्ट्रेंथ को ताल कहते हैं। भाव, राग, ताल। भारत, आपका देश का नाम क्या है? भारत। इसके अंदर कुंजी है हेल्थ की। The program has all the methodologies of correcting the strength, balance and rhythm of your body. Once you do that, कौन बचाएगा इस समय आपको? कोई दवाई नहीं बचा सकी, दवाई से तो खराब हुए। एनवायरमेंट आप ठीक करेंगे, कितना सा टाइम लगेगा? 200 साल से ज्यादा लग जाए, मे बी मोर देन दैट। इफ यू ट्राई टू करेक्ट द एनवायरमेंट, दिस इज नॉट द टाइम। यू कैन डू इट, यू कैन स्टार्ट समथिंग। यू कैन करेक्ट द फूड, आप फूड भी ठीक नहीं कर सकते। हाउ मच विल यू बी एबल टू करेक्ट द फूड अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ह्यूज मूवमेंट। ऑर्गेनिक जो स्टफ है वो तो आप खरीद लेंगे, महंगा मिलता है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या हर जगह मिलेगा नहीं। वॉट एवर इज अवेलेबल यू विल हैव टू ईट। तो बचाएगा कौन अभी इस बार? और कल को क्रैश हुआ तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? दोस्त डॉक्टर्स, दोस्त गूगल वाले, यूट्यूब और बाकी सब जितने लोग हैं आपके घर वाले, गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाओ, यही बोलते हैं ना। अगर क्रैश हुआ जिम्मेदारी लेगा कोई उनमें से? योर फैमिली, योर डॉक्टर, योर गवर्नमेंट, WHO, अमेरिका बहादुर जिसको आप रोज पैसा देते हैं हथियार बनाने को और दुनिया पर रूल करने को, चौधरी बना करता है वो। कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी? कोई भी नहीं। केवल आपका शरीर बचा सकता है आपको। ओनली योर बॉडी कैन हेल्प। बट उसको क्रिमिनल बना दिया आपने कुछ भी करेगा तो उसको खत्म कर दो, उसको स्टीरॉइड, आखिर क्या है? अरे स्टीरॉइड डाल दो, उसको नंब कर दो, कुछ फीलिंग ही ना हो। ये क्या तरीका है? वाई यू हैव मेड योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल? दिस इज द बॉडी बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ। So you must understand how this body functions, correct the functioning of this body, make the organs strong, correct the metabolic factor, improve the flow in your body, increase regeneration, and that's how you can come out of a disease. There is no other way. And no medicine can do that. कोई दवाई नहीं कर सकती। तो आपके शरीर के ही स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम को आप दोबारा से वापस लेके आइए, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। Even if you are not able to reverse your thing 100%, अगर आप 80%, 70% भी कर पाए, your life becomes problem free. That is all what you want. You don't want to get back to and become 16 years old again. ठीक है, ये आइडिया भी छोड़ दीजिए। You want to live forever? No, you should not live forever. You should live very, very intense life. है ना? Your experience should be very beautiful. Satisfied life. That is what Kumbhak can give. It can reverse your problem according to your age, whatever
टू वॉट एवर एक्सटेंट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, एक चीज तो गारंटी, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, आपका एक्सपीरियंस बहुत सुंदर हो जाए, है ना, आपके पेन फैक्टर्स कम हो जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपके अंदर नेचुरली खुशी होगी, अंदर से खुशी आएगी, संतुष्टि होगी। यही तो चाहिए हमें। एंड दैट इज व्हाई एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? इंप्रूव। प्लीज पे अटेंशन टू योर बॉडी। शरीर को थोड़ा सा इसकी तरफ में ध्यान दें। कोई और आपको नहीं बचा सकता, कोई और जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। ये शरीर हर क्षण जिम्मेदारी लेता है। एवरी मोमेंट दिस बॉडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट इट कैन लिव अ लिटिल बेटर। और हमेशा इसको खराब कर, रोज खराब कर, आपका बॉडी ही बचाएगा। इंक्रीज द स्ट्रेंथ फैक्टर्स एंड इट कैन बी इंक्रीज थ्रू कुंभक। कुंभक वो तरीका है जिससे आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें स्ट्रेंथ ला सकते हो, उसका बैलेंस बना सकते हो, उसका रिदम क्रिएट कर सकते हो। वो कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ बहुत सुंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pooja Singhal ma'am talks about nerves varicose. वेरिकोस वेन्स, सी एक चीज आप देखिए, आपको भी समझ में आए। सी एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, आप सब लोग समझदार हैं, केवल इंटेलिजेंस को छुपा के रखा हुआ है। इतना एजुकेशन ले लिया, इतना कुछ मोबाइल में पढ़ते लिखते हैं कि कुछ भी समझ में, सब कंफ्यूज हो गए। इफ यू ऑब्जर्व योर बॉडी यू नो एवरीथिंग। अगर अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान दें, आपको सब मालूम ही है। यू डू रिएसमेंट, यस और नो। अगर एक करवट सोए तो दूसरे करवट आ जाते हैं, दर्द आगा तो दिस इज इंटेलिजेंस। एक पांव दर्द कर जाए तो दूसरे पांव पे लोड डालते हो, बैलेंस किया आपने। ये हर मूवमेंट आप कर रहे हैं। योर बॉडी डिमांड्स अ टेस्ट। आप उस टेस्ट को देने की बजाय गूगल में पढ़ रहे हैं प्रोटीन किसमें ज्यादा है, किसमें, आपने शरीर बर्बाद कर दिया। तो ये शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, आपको मालूम ही है ना। आपके शरीर में द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। शरीर का निचला हिस्सा जो है ग्रेविटी के पकड़ में है, ठीक है, ऊपर का हिस्सा कम है। सो नेचुरली आपका हार्ट कहां पे प्लेस किया गया है? 50%, 50 मतलब आधे जगह पे नहीं किया गया, ऊपर किया गया। 3/4 नीचे से अगर आप देखें ना तो ऊपर की तरफ में हार्ट का प्लेसमेंट, सो दैट द फ्लो रिमेन्स इवन अक्रॉस द बॉडी। शरीर के अक्रॉस में फ्लो इवन रहेगा। ऊपर ज्यादा नहीं होगा तो क्या करेंगे? पतला कैपिलरी बना दिया, नसें क्या कर दी? पतली कर दी। ब्लड का आर्टरी क्या किया? पतला कर दिया। नीचे क्या? मोटा। तो पतले से ना अपने आप ऊपर चढ़ती है चीजें। पेड़ में क्या होता है? कैपिलरी एक्शन से वाटर ऊपर चला जाता है। तो इसीलिए ब्रेन को ज्यादा चाहिए तो वहां पे पतली पतली नसें ऊपर चला जाता है। मगर शरीर के निचले हिस्से में मोटे मोटे आर्टरीज हैं, मोटे हैं, वेन्स मोटे हैं। ये दो चीज, ये सिंपल सा आपको समझ में आना चाहिए। अब नाउ लेट्स कम टू अ लिटिल डीपर, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। हर एक जानवर की रीढ़ की हड्डी ऐसे होती है ना, दिस वे। आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे है? वर्टिकल। राइट और रॉन्ग? तो ग्रेविटी नीचे पुल करता है आपको, यस और नो? बट व्हाई यू ग्रो टॉल? ये न्यूटन से पूछा क्यों नहीं आपने? और अंग्रेज तो आपको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे न्यूटन से पहले ग्रेविटी नहीं थी। भाई नीचे खींचता है पृथ्वी कुछ भी, मगर पेड़ ऊपर क्यों उठ जाता है? व्हाई अ ट्री ग्रोज अप? देयर मस्ट बी एन अपवर्ड फोर्स, यस और नो? अभी बताया, वेबिनार में बताया कि नहीं? उदान, आप एक ऊपर का जोर लगा रहे होंगे। सो एंटी ग्रेविटी फोर्स आपका शरीर लगा रहा होगा ना। अगर ये कमजोर हो गया तो रीढ़ की हड्डी सीधी रह पाएगी? अच्छा उदाहरण 33, टेक 33 फ्लैट स्टोन्स, चपटे पत्थर ले लीजिए, ड्रिल होल एंड पुट अ रस्सी इनटू इट, रोप इनटू इट, जस्ट टेंस इट, खड़ा कर, ऐसे करके खींचिए दोनों तरफ से, ऑल द 33 स्टोन्स विल बी अलाइन। तो स्लिप डिस्क हो रहा है ना आप किसी को? क्यों? क्योंकि वो टेंशन नहीं है, वो ऊपर वाला फोर्स नहीं है। दवाई खा के फोर्स तो नहीं बढ़ने वाला और कम हो जाएगा। तो स्लिप डिस्क का क्या कहते हैं? ऑपरेशन करा लो, दूसरी जगह हो जाएगा। इलाज थोड़ी है वो। यू आर नॉट डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ योर बॉडी, आप ट्रीटमेंट कर ही नहीं रहे हो। तो अगर एंटी ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा तो योर द होल थिंग विल बी मोर इन इन्फ्लुएंस विद टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो आपका ब्लड फ्लो जो होगा ना, नीचे की तरफ में जोर ज्यादा होगा उसका, ऊपर की तरफ में जा नहीं पाएगा क्योंकि उदाहरण वीक है। फिर क्या होगा? वेन्स पे लोड पड़ता है।
है ना। तो वेन्स पे लोड पड़ता है तो क्या होता है, वहां के वेन्स वाल्व पे काम करता है, वाल्व कमजोर हो जाते हैं, ब्लड एक जगह ज्यादा जमा होता है, आगे बढ़ना मुश्किल होता है, वो आपको मोटे मोटे वेन्स दिखाई देते हैं। वेरिकोस वेन्स आपको समझा दिया, वेरिकोस वेन्स इलाज बता दीजिए, आप समझदार है ना। किस वजह से वेरिकोस वेन हुआ, उदाना फैक्टर कमजोर होने की वजह से। उदाना फैक्टर बढ़ाएंगे ठीक हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जिनका ठीक हो गया। Now there is another factor also, it is called as Vyana, which is a structural, which creates structural integrity of your brain. So all these in your module, everything related to your problem is there. कुंभक थेरेपी में हम इसको ठीक करते हैं, दोनों ही चीज को ठीक करते हैं, उदाना व्याना दोनों को फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंड वेरिकोस वेन चला जाता है, प्रॉब्लम चली जाती है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता। So it's very easy to cure these disease, but if you are looking somewhere else, if you are looking to your allopathic sciences, they are not looking in this manner. So they don't have a treatment for this. वो कहेंगे कि ठीक है जी ऑपरेट करके निकाल देंगे, फिर आ जाएगा। आपने उदाहरण तो बढ़ाया नहीं, आपने व्याना फैक्टर ठीक नहीं किया, फिर क्या होगा, दोबारा हो जाएगा। So that is not a treatment, it can be a management. See, surgery is also given to the world by us. Maharishi Sushruta actually compiled the whole process of surgery. And the वो जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते ना हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाके, he came to India to learn surgery from the third generation of Maharishi Sushruta, but nobody gives credit to him. सुश्रुत को सर्जरी के लिए कोई क्रेडिट नहीं देता, हिपोक्रेटिस को देते हैं जिसने सीखा यहां पे आके। तो सर्जरी इज अ मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ क्रिटिकल सिचुएशन, which is okay, but at least do your treatment, है ना। केवल मैनेज करके कितना, एक बार मैनेज किया फिर दोबारा मैनेज किया, रोज मैनेज करते रहेंगे क्या, रोज सर्जरी करवाएंगे नहीं। प्लीज करेक्ट योर फोर्सेस एंड फैक्टर्स, एंड दैट्स हाउ these things can be cured pretty easily, बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Navneet sir writes about suffering tennis elbow last 4 years. When you say tennis elbow, it means that वहां पे कोई at a particular place the flexibility has gone, so it gets stuck, अटक जाता है। कई लोगों को होता है, कई जगह पे होता है, वो अटक जाता है, वो जॉइंट अटक जाता है, फिर उसको मतलब थोड़ा देर में वो फिर रिलीज होता है। So I would make you experience this practically, इसको practically आप experience, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, यू विल हैव टू डू इट सम टाइम लेटर। बट व्हाट यू डू, यू ट्राई टू टच द हेड टू द नी, खड़े होके ना अपने सिर को अपने घुटने से लगाने की कोशिश कीजिए, मतलब जोर नहीं लगाना। सी वेयर यू रीच, आप कहां पहुंचते हैं आपको केवल वो ऑब्जर्व करना। देन यू सिट डाउन, इनहेल होल्ड एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, सांस लें रोक लें, जितना कंफर्टेबल हो उतना रोकें, फिर रिलैक्स करें। ऐसा आप बहुत एक मिनिमम पीरियड वो बता रहा हूं 12 बार करें, 12 टाइम्स ओनली, जस्ट डू इट 12 टाइम्स। इनहेल होल्ड एज लॉन्ग एज इट इज कंफर्टेबल एंड देन रिलैक्स, ऐसा 12 बार करें। अगेन गेट आप उठ जाएं, ट्राई टू टच योर हेड टू द नी, हेड को घुटने से लगाने की कोशिश किया। सी वेयर यू रीच, अब देखिए कहां पहुंचते हैं, आप ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। Not by doing exercise, not by walking, not by jumping or doing anything, just holding your breath for some time. The flexibility of the body increases. I have many people who have gone through all the courses of Hatha Yoga, what you call as asana, yoga asana, है ना, वो हठ योगा का पार्ट। हठ योगा के बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स और प्रैक्टिशनर्स मेरे पास में आए, एंड दे हैव एवरीबडी, कोई भी इसमें अलग नहीं है, हर एक का एक्सपीरियंस यही है कि आफ्टर डूइंग कुंभक आवर बॉडी हैज बिकम मोर फ्लेक्सिबल। सो कैन टेनिस एल्बो बी क्योर्ड, ये बहुत आसान है इसको ठीक करना। आपको केवल अपने जॉइंट्स को फ्लेक्सिबली तो बनाना है, और वो कुंभक से बहुत आसानी से होता है। देयर आर पीपल हु कुड डू सच थिंग्स, उनके सिर नहीं लगते थे या फिर उनका बेंडिंग नहीं हो पाता था, दे डू कुंभक एंड दे से कि अब तो बड़ी आसानी से हो जाता। सो
देर आर मेनी मेनी फैक्टर्स टू इट। क्यों होता है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, मगर चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकली बताया, आप ऐसा करो, हो जाए। अगर आप ठीक हो गए तो आपको चर्चा की जरूरत है क्या, ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। और ज्ञान ले भी लिया तो भी ठीक नहीं होंगे ना। कितने ज्ञानी हो गए हैं सब दुनिया में, मगर ठीक कोई भी नहीं है। तो आप शरीर को जरूरी नहीं है कि बहुत जाने तभी आपको इलाज मिलता है। आपको इलाज एक्चुअली मालूम ही है, मगर ज्ञान के चक्कर में फंस गए, है ना। बहुत सिंपल है। इससे समान फैक्टर एक बॉडी में वो ठीक होता है, इससे गार्हपत्य अग्नि है आपके शरीर की, वो ठीक होती है। तो ऐसे मैं बहुत बोल सकता हूं उसके बारे में, पर उससे फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकली बता दिया, आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। मतलब आपको रिजल्ट आ जाएगा इमीडिएट। नेक्स्ट। ओके, यशुबला मैम लिखती हैं, जी स्वामी जी मेरा नाम यशुबल है, मेरे एंकल में सूजन है। सूजन, सूजन, अब मैं आपको एक फैक्ट, एक चीज तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, दैट इज इन्फ्लेमेशन। सूजन क्या है? इन्फ्लेमेशन। तो सूजन क्यों होता? ईदर या तो इन्फेक्शन होगा वहां पे, ईदर देर इज इन्फेक्शन एट दैट पॉइंट। दूसरा, देर इज वेयर एंड टेयर, वहां कोई मसल का थ्रेड टूट गया या कोई टिश्यू डैमेज हो गया। थर्ड थिंग, है ना, वेयर एंड टेयर। थर्ड थिंग इज डिपोजिशन ऑफ सम टॉक्सिन। If your body is creating more uric acid, the uric acid usually deposits at the joints and you'll see a swelling or an inflammation of joint. ठीक है ना। एक फैक्टर ये भी है। एसिड आपके बॉडी में अगर ज्यादा हो रहा है तो भी वो हो सकता है। यूरिक एसिड इज वन एसिड। तीन चीजें बताया आपको, 3 थिंग्स, जिसकी वजह से सूजन हो सकता है। तो इन्फेक्शन हुआ तो you'll have to go towards doing something to cure that infection, है ना। इन्फेक्शन में वेयर एंड टेयर, गिव योर बॉडी अ लिटिल रेस्ट, इट विल बिकम फाइन। आप बॉडी को रेस्ट दो, ठीक हो जाएगा, है ना। स्पेशली इफ यू सपोर्ट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मूविंग इट अ लिटिल अप। अगर आप अपने कमर के लेवल से जिस जगह पे भी सूजन है उसको थोड़ा ऊपर रखते हैं ना, तो भी सूजन चला जा सकता है ना। उसको सहूलियत मिल जाती है। इट विल बिकम इजी फॉर दैट पार्ट टू क्योर इटसेल्फ फास्टर। Now, if your body is creating more uric acid and there is a metabolic disorder, that means your body is creating more toxin. आपका लिवर ठीक नहीं है ना, लिवर ठीक नहीं है। Now again I'll go a little ahead to make you understand कि whenever you take a medicine, क्योंकि सबको समझने की जरूरत है, दरकार है कि सभी समझें, कम से कम सबको समझ में आना। Whenever you take medicine, where does it go first? सबसे पहली जगह कौन सी है मेटाबॉलिज्म की? Your liver. So your food gets digested, becomes digestive, becomes juices form में हो जाएगा, it goes to the liver और उसके बाद आगे जाएगा। So your insulin also falls in the liver. जो आपके शरीर में इंसुलिन होता है ना, वो भी लिवर में जाता है। Then T4 converts to T3. Tetrahydrothyronine converts to thyroxine in your liver. थायराइड में एक फैक्टर लिवर का है जो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो लिवर में आ गया। लिवर, कोई भी मेडिसिन खाएंगे, इट विल कम टू द लिवर। लिवर आपका दूसरा ब्रेन है, इट्स अ सेकंड ब्रेन, इट रिकॉग्नाइजेस योर फूड। इसको मालूम है ये मेरा भोजन है, ये मेरा भोजन नहीं है। तो इट विल ट्राई टू थ्रो द केमिकल आउट, वो केमिकल को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। तो डोज टाइट्रेशन करते हैं, यानी आपको 500 मिलीग्राम की दवाई देते हैं, आपको चाहिए कितना? 2 मिलीग्राम। 500 क्यों दे रहे हैं? Because 496 milligram will be thrown out by the liver and your kidney. 2 फिर भी स्नीक इन कर जाएगा, आपके शरीर में घुस जाएगा। वही 2 मिलीग्राम काम कर रहा है। ये डोज टाइट्रेशन ऐसे किया जाता है। तो किस पे लोड पड़ा? लिवर पे और किडनी पे। किडनी इश्यूज बढ़ रहे हैं, लिवर इश्यूज बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये 2 जगह। अब लिवर बेचारा कमजोर हो जाता है, लिवर बिकम्स वीक। ठीक है ना। सो लिवर बिकम्स वीक, गेट्स इनटू इन्फ्लेमेशन। इसको जलन होने लग जाता है केमिकल से। आप अपने हाथ में खरोच लगा लो, जलन होगा ना। घी लगा लो थोड़ा सा, ठीक हो जाए।
सो लिवर क्रिएट्स फैट टू कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन। मगर आप कहते क्या उसको? फैटी लिवर। किसी ने लिखा था ना फैटी लिवर। अरे फैटी लिवर तो आपको बचाने के लिए। योर बॉडी इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड टू मेक कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन। आपको बचाने के लिए, कॉर्टिसोल बनाने के लिए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है आपका शरीर। आप क्या कहते हो? स्टैटिन खा ले तो कम कर देते। मतलब आप तो काम ही नहीं करने दे रहे। लिवर बेचारा बचा रहा है, कहते हो फैटी लिवर है, खत्म करो उसको। ना वो बेचारा कमजोर हो गया, इंसुलिन क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा? आप कमजोर हो जाते तो चुपचाप बैठते हो ना घर में, मार्केट में तो नहीं जाते। लोगों से बात करने में थोड़ी तकलीफ होती है ना, एलर्जी हो जाती है। कमजोर हो गए तो लिवर बेचारे को एलर्जी हो जाती है, कमजोर हो जाता है, वो इंसुलिन नहीं लेता। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी को डायबिटीज है कहते हैं। व्हाट इज डायबिटीज? इट्स एन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि लिवर पे आ गया, क्योंकि आपने लिवर को दिन रात बम्बार्ड कर दिया। फिर कहते हैं डायबिटीज हो गई जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आप सब समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, है ना? आप समझदार हैं लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। सो वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स इन द बॉडी। लिवर खराब कर दिया, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बॉडी में ठीक से बन नहीं पाएगी चीजें, आपके भोजन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जो आपको चाहिए उसमें नहीं बन पाएगा, वेस्ट ज्यादा बनेगा। इंजन खराब होता है तो धुआं ज्यादा निकलता है ना। फैक्ट्री का इंजन खराब हो तो माल अच्छा नहीं बनाएगा, है ना? तो आपका शरीर जो है अच्छा माल नहीं बना पा रहा, तो टॉक्सिन ज्यादा हो रहा है, क्रिएट कर रहा है। वही यूरिक एसिड है। किडनी को बेचारे को कमजोर कर दिया, यूरिक एसिड बन रहे हैं आपके शरीर में, है ना? हाइपर बिलिरुबिनीमिया, माइक्रो एल्बुमिन, बिलिरुबिन का लेवल, ये सब बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका किडनी काम नहीं कर रहा, आपका लिवर काम नहीं कर पा रहा ठीक से, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, सूजन आ जाएगी। और डिपोजिशन कहाँ? जॉइंट्स में होता है, या तो लिम्फेटिक ग्लैंड में होगा, लिम्फ जगह पे, नोड, लिम्फ नोड कहते हैं। शरीर में जो भी जगह बन जाती है टिश्यू के बीच में, वो लिम्फ नोड होता है, वहां पे होता है। फिर वो लिम्फेटिक कैंसर बन जाता है। आजकल लिम्फेटिक कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है, लिम्फ का कैंसर, लिम्फ नोड का कैंसर, क्योंकि टॉक्सिन्स बन रहे हैं, वो वहां जमा हो रहे हैं, वहां सेल को खराब कर रहे हैं, वहां का रीजनरेशन डिजेनरेशन खराब कर रहे हैं, इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन रहा है, तो अल्टीमेटली जाके वो कैंसर बन रहा है। इतनी सारी बातें कर दी, इलाज एक ही है, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए, अपने लिवर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, किडनी का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाइए। एक ही तरीका है, वो दवाई से नहीं होता, वो कुंभक से होता है। नेक्स्ट। Ram Das talks about one of my friend is suffering from liver psoriasis. सोरियासिस बेसिकली ऐसे मान के चलिए, अभी शुरुआत में हमने क्या बात किया? वाटर रिटेंशन नहीं हो रहा। अगर पानी नहीं होगा तो सूखेगा ना, सूखेगा ना। मिट्टी सूखती है तो क्या होता है? क्रैक पड़ जाते हैं ना। आप लोग सब जानते हैं ना इस बात को। कोई मार्स का ज्ञान तो नहीं है ना, पृथ्वी का ही ज्ञान है ना, आप लोग सब जानते हैं। तो आपके शरीर में भी लिवर के साथ में ये होगा ना, अगर वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा आपका शरीर, तो क्रैक होने लग जाएगा ना, सूखने लग जाएगा। दैट इज लिवर इश्यू, लिवर सोरियोसिस। तो क्या करना है? वाटर रिटेंशन होगा। अगर आपका मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये ठीक हो जाएगा, है ना? थोड़ा सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ फैक्टर्स बढ़ाएंगे। लिवर को ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? लिवर की तरफ अगर आपको अपने स्ट्रेंथ को डायरेक्ट करना है तो इनहेल 1 काउंट, काउंट का मतलब यूनिट कह लो, 5 सेकंड में, 5 सेकंड मान, 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन करेंगे तो लिवर की तरफ में इसका ट्रिगर जाता है। 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी की तरफ में जाता है ना? ऐसे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बट क्या है उसमें मेन पार्ट क्या है? हमको आपको डायग्नोज करना पड़ेगा, आपका कौन सा फैक्टर वीक है ना, कौन सा फैक्टर वीक है, फिर उस तरफ में काम करेंगे तो ये असर करेगा ज्यादा। यही हम करते हैं। डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बताया आपको डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका वीक फैक्टर हमको पता करना है, और उसके बाद आपका कस्टमाइज किया जाएगा, चीजों को नंबर्स दिए जाएंगे ताकि वो ठीक हो सके। आगे नेक्स्ट।
सोराइसिस sorry, स्किन का, हाँ बोलिए बोलिए रचना जी। हाँ. Itishri Sahu, please ask your question. You've raised your hand. I've unmuted you. Itishri Sahu. Anybody from the participants who would like to ask their question can now ask their questions. You can raise your hands. हाँ जी दपिंदर जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। दपिंदर कौर। Hello, I have a meniscus tear and fatty liver. Fatty liver, I have spoken. I told you about fatty liver. Okay, meniscus tear, sir. Meniscus Meniscus tear. tear is degeneration deficiency. Your body is not able to regenerate. It's a Okay. degeneration thing. So your body is not able to regenerate because of the metabolic weakness. If you improve the metabolism, the regeneration will happen and the condition will get sorted. Okay, sir. Itishri Sahu, are you able to unmute yourself to ask your question? No, आगे जाते हैं, दूसरे पे देख लो, कोई और पूछ लो। हाँ. सर एक्चुअली मेरे को स्पाइन में बल्ज आया है, तो अभी मैं बहुत सारा प्राणायाम और योगा करती थी, जो डॉक्टर ने मेरा स्टॉप कर दिया है कि जर्क नहीं देना है आपको स्पाइन में। तो यही पूछना मैं चाहती थी कि कुंभक विल हेल्प मी, और मतलब गलत तो नहीं हो जाएगा उसमें कुछ? ऐसा करके आप ठीक हो जाएंगे क्या? जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया उसको कर। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि आप ऐसा ना करें, उसको करके ठीक हो जाएंगे क्या? मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अभी तक कोई ठीक नहीं हुआ। जी सर। तो ऐसे एडवाइस जिससे कोई ठीक नहीं होता, इसको आपको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। आपका पांव कमजोर हो जाए और मैं बोलूं कि व्हील चेयर ले लो, तो आपका पांव मजबूत हो जाएगा क्या? जी मजबूत हो जाएगा व्हील चेयर पे बैठ के? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ किसी का। तो दिस इज जस्ट रबिश एंड यू आर एक्सेप्टिंग दोस काइंड ऑफ एडवाइसेस। व्हाई? आप मुझे बताइए, आपकी जोर लगेगा तो आपके शरीर को पता लगेगा, डॉक्टर के शरीर को पता लगेगा? आपके शरीर को पता लगेगा ना। एंड यू विल नॉट डू इट इफ यू फील अनकंफर्टेबल। राइट। Body knows what is your comfort level, or doctor knows what is your comfort level? Yes, your sir. Body knows what is your comfort level. So by using your body, you can increase the strength, isn't it? By moving the leg, you can increase the strength. पहली बात तो ये मैंने बताया। दूसरी बात, there are people who will not be able to do any kind of bending thing. We have 3 things that we teach you. ठीक है? The first one is Anganyasa, which doesn't need much of a body movement. बैठ के आप कर सकते, just needs a little hand movement. कि आपके बॉडी में there are certain murmurs where you have to move it in a move the murmurs in a particular manner. So murmur अंगन्यास कहते हैं उसको, या फिर मर्मन्यास भी उसको कह सकते हैं। दूसरा पार्ट है that we call as मर्म विन्यास और हठ विन्यास। ये दो कह सकते हैं। हठ विन्यास needs a certain body movement with a breath flow. उसमें आपके बॉडी के फ्लो को इंप्रूव करने के लिए बॉडी को मूव कराते हैं विद अ ब्रेथ फ्लो। देयर आर पीपल हु विल नॉट बी एबल टू डू दैट सेकंड पार्ट। तो व्हाट वी से, डोंट डू द सेकंड पार्ट इनिशियली। व्हाट इज द थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट इज कुंभक थेरेपी, व्हिच एवरीबॉडी कैन डू। ठीक है, जस्ट सिटिंग, इवन इफ यू आर एबल टू सिट ऑन द बेड, यू कैन डू दैट। तो आप क्या करें, स्टार्ट फ्रॉम वन प्रैक्टिस। अगर आप अंगन्यास से शुरू करते हैं, you just do one अंगन्यास, you'll see the strength of the body will come back slowly. When the strength of the body comes back, you do Kumbhak therapy, the third part. And when you are pretty recovered, where you can move your body और उसमें bend करने में problem नहीं आ रहा, you can do Hatha Vinyas, third step. Right? But there is a process of increasing the strength of your body. And your body knows how much you can take leverage. Doctor doesn't know. और अगर आप शरीर पे रेस्ट करा के आप रिकवर हो जाएं, तो एस्ट्रोनॉट जो है ना, वो दिन में 14 घंटे एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि उनके मसल लॉस होता है। द मोर यू टेक
rest, don't use your body, you lose muscle. Yes, sir. Your body becomes unrecoverable. So what we are saying, Kumbhak is the method where you don't have to take any stress with your body. Just by sitting comfortably, you can start building the strength. And when you have the strength, you can then do the Okay. Hatha Vinyasa also. नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं लंग कैंसर से सफर कर रही हूँ फॉर लास्ट 4 years, अंडरगॉन सर्जरी और नी जॉइंट पेन भी है। उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि नी सर्जरी रिप्लेसमेंट। अब ये लंग कैंसर का कुछ क्यूर हो सकता है? वीर ना कैंसर, आप देखिए हम लोग कैंसर का प्रोग्राम करते हैं। आप नीचे अपना नंबर डाल दीजिए, साथ में कैंसर लिख दीजिए, हम आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर देंगे। कैंसर के लिए एक अलग प्रोग्राम। हाँ, तो आपको कोई ना कोई आपको कॉल करके आपको सही प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर देगा। लंग कैंसर? हाँ, लंग कैंसर में तो बहुत फायदा होता है। हमारे पास में ऐसे लोग हैं जिनके लंग्स निकाल दिए गए, उसके बाद भी उनकी लाइफ बहुत बेटर हो गई। मतलब देखो, कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है ना, उससे रिलैप्स बहुत जल्दी होता है। कैंसर का ट्रीटमेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर के सेल्स को निकाल देना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कैंसर का ट्रीटमेंट अभी फिलहाल में यही है। जो कीमोथेरेपी है उसका मतलब क्या है कि जो खराब सेल्स हैं उसको निकाल दिया जाए। किसी चीज को निकाल देना ट्रीटमेंट नहीं होता, वो बन ना पाए ऐसा कुछ करना ट्रीटमेंट होता जी। तो निकाल देने की वजह से शरीर में और कमजोरी आ जाती है। लोग कीमोथेरेपी के बाद 2-2, 3-3 हफ्ते तक बिस्तर नहीं छोड़ पाते थे। उन्होंने कुंभक शुरू किया और 24 घंटे में खड़े हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। तो कम से कम उस लेवल तक तो लेके आए कि जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उससे जो नुकसान है उससे कम से कम निकालें, उसके बाद उसका रिकवरी भी होता है। सो ऐसे हमारे पास केसेस हैं वेयर लंग निकाल दिया गया उसका, लेकिन रिलैप्स लंग में नहीं हुआ। ऐसे मेरे साथ हुआ कि अभी गले में हो गया, गले में ट्रैकिया। तो ये रिलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने ट्रीटमेंट लिया है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर ठीक करने का कोई तरीका नहीं है ना। कई बारी तो ऐसा भी होता है। देखो, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। मैं ही सारी बातें करूं, इससे बढ़िया है कि एलोपैथी के अंदर से लोग आए और वो इसके बारे में ज्यादा बात करें, क्योंकि मुझे तो साफ दिख रहा है कि ये खराब कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। मगर क्या है कि उन्हीं में से कोई और, मगर ये इतना विकराल रूप ले चुका है कि अगर इनके खिलाफ में कुछ भी बोलो तो पूरी की पूरी जमात एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लड़ने लग जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो धंधा भी है ना, इट्स अ बिजनेस ऑल्सो। So it is better that people from that fraternity comes up and say कि ये ऐसा है तो ऐसा है, but at the same time we also want कि लोगों को तो तकलीफ हो रही है ना, उनको सपोर्ट मिले, है ना। तो at least go towards recovery, your life becomes better, that is a big achievement ना। And I'm 64 year old. बताओ, अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है, अभी तो कोई एज नहीं है ना। तो just do something। हाँ, 64। अच्छा, आपको ज्यादा लग रही है कि आपकी एज? अच्छा, मैंने सोचा मुझे 64 कोई एज थोड़ी होती है। अभी आपकी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। कुछ अपने शरीर को सपोर्ट दीजिए, क्योंकि इसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है जी। पारुल नेम चैट बॉक्स में दे दिया, लिख दिया है। हाँ, वो ले लिया जाएगा, आप चिंता ना करें इसकी। ओके, थैंक यू। Parul ma'am, you can ask your question, please. गुड इवनिंग सर। सर मुझे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक मुझे एंटीवेस्कुलर नेक्रोसिस है और एक लाइकन प्लेनस है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? सर वेन्स में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाना, ऐसा बताया गया, जैसा एज पर एलोपैथिक आपको समझना चाहिए ना। आपको सवाल जवाब डॉक्टर से ज्यादा कर, क्योंकि ये शब्दावली किसने, ये ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी किसने रखी है? हमने तो नहीं रखी, हम तो अलग भाषा में बात कर, ये उन्होंने ही रखा। तो उनसे पूछा करो कि क्या है, क्यों होता है, और क्यों 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 आगे ले जाया करो, फिर पता चल जाएगा। उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। जितना ज्यादा क्यों ले जाएंगे ना, फिर जवाब खत्म होता। कहते हमें नहीं मालूम जी, वो सारा जेनेटिक्स पे डाल देंगे, कहेंगे कि ये आज तक पता नहीं चला। पहली बात, नेक्रोसिस का मतलब होता है मर जाना, सेल का डेथ हो जाना।
ठीक है, नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्यों होगा? ब्लड फ्लो नहीं होगा वहां पे, नेक्रोसिस हो सकता है। ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये बोल देते हैं कि ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, नेक्रोसिस हो गया। जरूरी नहीं है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आपको जो बताया जा रहा है ऐसा लगता है कि वो ज्ञान है, मगर वो ज्ञान जरूरी नहीं कि है। और भी रीजन है जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। तो अभी एक्सप्लोरेशन लाइफ का बहुत ज्यादा चाहिए, जिसे कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ना के बराबर हुआ है अभी दुनिया में R&D। अगर हमें गुलाम नहीं किया बनाया जाता, हमें आजाद छोड़ा जाता, तो ये सब तो 500 साल पहले हो जाता। ये तो हमसे चुरा के हमको गुलाम बना दिया, और ये स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो भी जाके दीवार पर टक्कर मारते हैं 5 साल के बाद, कहते हैं कि गलत हो गया। लाखों लोगों को खराब करके फिर कहते हैं ये तो गलत हो गया। एक एग्जांपल दूं मैं आपको। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है? कितने लोगों को मालूम है? नहीं भी उठाएंगे तो मुझे मालूम है, सबको मालूम है हार्ट ब्लड को पंप करता है कि नहीं है। मगर ये सच नहीं है, हार्ट ब्लड को पंप करता ही नहीं है। आप बोलिए, आपने तो इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था, वो ज्ञान तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि गलत है ज्ञान। हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता, वो खींचता है। एंड दिस इज कटिंग एज मॉडर्न मेडिकल साइंस का रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। 100 साल से आपको क्या पट्टी पढ़ाई है? अब उसके बेस पे इलाज तो नहीं होगा ना। तो हार्ट डिजीज का इलाज, हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ टुडे। नोबडी नोज व्हाट इज हार्ट, नोबडी नोज व्हाट इज ब्लड प्रेशर, नोबडी नोज व्हाट इज डायबिटीज। आपको लगता है कि आपका डॉक्टर जानता है, आपके डॉक्टर को लगता है कि वो जानता है, मगर डॉक्टर का भी जो बाप है ना, साइंटिस्ट है, उसको मालूम है कि जी हमें तो नहीं मालूम। तो ये पढ़ाई लिखाई का नुकसान है कि आपको कुछ पढ़ा दिया, आप वही समझ रहे हैं। तो नेक्रोसिस और भी कारण से हो सकते हैं, लेकिन जो मालूम है वो बोल दिया कि यहां ब्लड फ्लो नहीं हो रहा या ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो रहा। एक कारण ये बता, क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं, ये भी सही है। मगर क्यों नहीं हो रहा? अब आइए बात उस पर, क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे एक बात बताइए, ब्लड का हर जगह फ्लो करवाने के लिए बॉडी के अंदर एक प्रेशर होना चाहिए ना प्रॉपर, तभी वो फ्लो करेगा। अगर आप किचन का सिंक ब्लॉक हो जाता है तो खोलना है तो क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, जोर लगाते हैं, तब जाके खुलता है वो। आपके शरीर के अंदर भी एक प्रेशर होता, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता। देखो, ब्लड प्रेशर नहीं होता, ब्लड का कोई प्रेशर नहीं है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए पट्टा बांधते हैं तो क्या ब्लड को जब दबाते हैं आप, कि सारे टिश्यूज को दबाते हैं, मसल्स को दबाते हैं? मसल दबते हैं ना, तो प्रेशर तो मसल का भी निकला है ना। तो वो बेसिकली प्रेशर जो उसे व्यान पक्ष कहते हैं, और ये शरीर के हर एक सेल में होता है। जैसे डीजल का इंजन बिना प्रेशर के काम नहीं करता, आपका सेल भी बिना प्रेशर के काम नहीं करता, हर एक सेल में। लेकिन अगर वो प्रेशर अंदर कम हो गया तो गड़बड़ी हो। इसीलिए एक मिनट म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। एक मिनट हम आपको म्यूट कर, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। तो अब अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ाना है, आप शरीर को थोड़ा इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, ब्लड फ्लो हो जाता ना। वो जब आपने एक्सरसाइज किया तो किया क्या? आपने सांस रोका अंदर, तब जाके शरीर को हिलाया। बिना सांस रोके आप शरीर को नहीं हिला सकते, करके देख लीजिए। आपको वेट भी उठाना है तो सांस रोक के वेट उठाना होता, चेयर से भी उठते हैं तो थोड़ी सांस रोकते ना। बिना सांस रोके यू कांट मूव योर बॉडी। तो आपने कुंभक किया तब जाके ब्लड फ्लो बढ़ा। आप नाम किसका देते हो? एक्सरसाइज का दे देते हो, वॉकिंग का दे देते हो। मैं उसके पीछे जानने को कह रहा हूं। कई लोग वॉक नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या उपाय है? वो बैठ के कुंभक कर लें, वो वॉकिंग से भी ज्यादा फायदा होगा, जिम्नास्टिक से भी ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, बैठ के आप वो कर सकते हैं। ये खूबसूरती है कुंभक की। और इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी को कोई बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? कुंभक बचा सकता है। और कुंभक कोई अलग से चीज नहीं है, आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है। ये ना सोचे ये बाहर से आया कहीं से, दूसरे ग्रह से नहीं आया कुंभक। दैट इज हाउ यू फंक्शन।
इसी तरीके से आप काम करते हैं, कुंभक के जरिए ही काम करते हैं। तो आपने जरा वैसे भी शरीर में जोर लगा लो। अब एक एग्जांपल देता हूं, सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन हो गया, पॉटी नहीं हो रही, क्या करते हो? सांस रोक के जोर लगाते हो कि नहीं? कुंभक कर रहे हैं आप, तभी फ्लो हो रहा है। आप कुंभक कर रहे हैं तभी फ्लो हो रहा है। तो अगर इसको सही तरीके से कर लेंगे तो ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस खत्म। जहां ब्लड फ्लो चालू हो गया, ऑक्सीजन आ जाएगा, नेक्रोसिस खत्म। मगर मैं आपको एक और बात बता रहा था, पहले भी बता रहा था, ये केवल ब्लड फ्लो के बारे में नहीं है। आपके शरीर के सेंसेशन आपके शरीर के बाहर भी होते हैं। तो जिसे हम प्राण फैक्टर कहते हैं, जिसे हम एनर्जी बॉडी कहते हैं, कुंभक आपके एनर्जी बॉडी को एक्सपैंड करता है। तो आपके डेड सेल्स जो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आपका रीजनरेशन फैक्टर बढ़ जाएगा, आपके सेल का जो, जिसे हम कहेंगे एनर्जी जो है, या फिर प्राण या अलाइवनेस कहना सबसे कंड्यूसिव होगा। अलाइवनेस, जीवंतता, जिसको हम आयुष कहते हैं। आयुष का मतलब जीवंतता, और आयुर्वेद का मतलब जीवंतता को बढ़ाने की कला। जड़ी बूटी तो 2% है आयुर्वेद में। वी हैव लॉस्ट द मेन आयुर्वेद, ओनली जड़ी बूटी रह गई है। सो मेन पार्ट आयुर्वेद का वी हैव लॉस्ट, एंड कुंभक इज द आयुर्वेद। तो ये जीवंतता बढ़ाता है, ये आयुष बढ़ाएगा आपके। आयुष की वजह से आपकी आयु बढ़ती है, और आयु का मतलब जीवंतता होती है। एज भी होता है, बट एज इज अ सेकेंडरी मीनिंग। जितनी जीवंतता होगी उतनी एज बढ़ जाएगी। इट्स अ सेकेंडरी मीनिंग। प्राइमरी मीनिंग इज अलाइवनेस। तो अलाइवनेस कम हो जाएगा तो नेक्रोसिस हो जाएगा। सो अलाइवनेस में ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो एक माइनर फैक्टर है। अलाइवनेस या लाइफ इज अ मेजर फैक्टर, जिसे हम प्राण तत्व भी कहते हैं। इट्स अ मेजर फैक्टर। कुंभक वो बढ़ाता है। Okay, One Mahadev last sir, you question, can. last question. नमस्कार स्वामी जी, मैं 72 ईयर्स का हूँ। हाँ जी। मुझे डायबिटिक्स हूँ 15-20 साल से। लेकिन अभी रिसेंटली मेरे, जैसे ही मैं चलता हूँ मेरे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बिल्कुल नहीं चल पाता हूँ, सांस फूलने लग जाता है, और कमर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। हाँ, अब तो क्या सही रहेगा? हाँ, देखिए, लंग इश्यू जब भी आता है ना, कोई भी लंग का इश्यू, तो आपको जोर लगाने में सांस फूलने लग जाएगी। यानी शरीर में अगर जान कम है तो जोर लगाएंगे तो सांस फूलने लगेगी, ऐसा भी मान के चलो। तो आप जोर लगाने में कर क्या रहे हैं? बेसिकली आप एक्चुअली सांस को रोक रहे हैं जोर लगाने में। तो अगर जोर नहीं लगा पा रहे तो क्या नहीं कर पा रहे? आप सांस को ज्यादा रोक नहीं पा रहे। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं जो सभी जानते हैं, जरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आप जोर लगाते हैं तो सांस रोकते हैं। जोर लगाने में तकलीफ आ रही है तो यानी सांस रोकने की कैपेसिटी कम हो गई, क्षमता कम हो गई। इलाज क्या है? सांस रोकने की क्षमता बढ़ा दीजिए, आपको जोर लगाने में तकलीफ नहीं होगी। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल सैकड़ों लोगों का, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का है इस वक्त। ऐसे लोग हैं हमारे पास में, डायबिटीज वाले जो आते हैं डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। वो कहते हैं कि, एक लेडी का एग्जांपल मैं बताता हूं। वो कहती है मुझे तो बहुत सांस फूलती, मगर उसने डायबिटीज प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसके बाद में कुछ ही दिनों के बाद में उसने एक टेस्टिमोनियल दिया। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। मैंने कहा क्या? कहती है कि एक फ्रेंड के यहां गए, लिफ्ट खराब थी, 5वें मंजिल पे जाना था। 5वां मंजिल मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं चढ़ूंगी कभी, क्योंकि वो कहती है मैं 10 सीढ़ियां चढ़ू ना, मेरी हांफने की हालत हो जाती थी, मैं वहीं बैठ जाती। 5वां मंजिल चढ़ना इम्पॉसिबल। कहती मैं 5वें मंजिल तक चढ़ गई, मैं हाफी नहीं। और इसीलिए मैंने आपको फोन करके सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाह रही हूं कि ये कैसे हो गया। ऐसा तो मेरी लाइफ में कभी हुआ, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा ये कुंभक से हो गया। आप जो जोर लगाते हो वही बढ़ा दिया हमने, सांस रोकने की क्षमता बढ़ा दी आपकी, तो आपको जोर लगाने में तकलीफ नहीं हुई। कहती 5वीं मंजिल जाके मेरी सांस फूली नहीं, मतलब थोड़ी तेज थी मगर वैसी नहीं फूली। कहती ये तो चमत्कार है। मैंने कहा चमत्कार नहीं, ये आपका शरीर है, ये ऐसे ही काम करता, आपका शरीर ऐसे ही काम करता, आप इसको समझिए।
और इसको ठीक कीजिए, जिसे आप चमत्कार कहते हैं वो होने लग जाएगा। पर हमें चमत्कार की जरूरत नहीं, हमें इसे समझने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत। कुंभक इसी का फंक्शनल मैकेनिज्म है, इसको इस्तेमाल कीजिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी बहुत आराम से, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि 2 हफ्ता आप कुंभक करोगे ना, आपकी सांस फूलना खत्म हो जाएगा। वी रन अ प्रोग्राम कॉल षडांग प्रतिष्ठा, षडांग प्रतिष्ठा करके एक प्रोग्राम रन करते हैं, किसके लिए? आस्थमा, एलर्जीज उनकी, और ये सभी का एक्सपीरियंस है। वो लोग कहते हैं कि हमने कुंभक शुरू किया और उसके बाद में जो हमारे इनहेलर, जो सांस फूलती थी, सब खत्म, है ना। तो ये बहुत आसान है, इसको ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। डायबिटीज, ज्यादातर लोग डायबिटिक नहीं है मगर वो दवाई खा रहे हैं, तो डायबिटीज में जो प्रॉब्लम आती है वो भी आपको उसमें फायदा हो जाएगा। सांस फूलना तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विल क्लोज दिस वेबिनार। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? स्वामी जी, एक क्विक क्वेश्चन, ये स्किन साइरोसिस 15 साल से है पैर में और हाथों में, ये ठीक देखो, हो सकता है? हाँ, सोराइसिस अगर स्किन का है तो इसमें 2 चीजें आपको समझना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी, क्यों इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नागवायु इन योर बॉडी। आपके शरीर में एक चीज है, इसे कहते हैं नागवायु। नागवायु को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो इट बिकम्स यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। आपका ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, आपके हार्मोन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, आपका लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, आप देखेंगे आपके नर्वस फ्लो भी एक ही डायरेक्शन में होता है। तो यूनी डायरेक्शन फ्लो को जो कंडक्ट करता, जो रेगुलेट करता है, उसको नागवायु कहते हैं। ना यूनी डायरेक्शन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक है आपके स्किन का, है ना। जैसे मैंने बताया, इसके ऊपर बहुत रिसर्च की जरूरत है। हम चाह रहे हैं कि हम इसके तरफ में रिसर्च कर रहे हैं, बट वी आर शॉर्ट ऑफ पीपल, वी आर शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास में मालूम है कि कैसे करना है रिसर्च, बट लोग ही इतने आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ही इतनी है, हम तो उसी में जूझे हुए हैं। तो देयर इज अ फैक्टर, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो, जो आपके स्किन का भी एक वो क्वालिटी है। आप देखेंगे किसी नाग, जो सांप होता है ना, वो अपनी पूरी स्किन एक बार में शेड कर देता है। तो स्किन का रीजेनरेशन क्वालिटी नागवायु। Swamiji, please unmute yourself. There was an echo. ये जो नागवायु की वजह से स्किन का जो हमारा रीजनरेशन कैपेसिटी बनता है। दूसरी चीज होती है, हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या आप ना उस पर लिख दीजिए, पहले मैं ये जवाब दे दूं। तो नागवायु अगर ठीक करेंगे ना, स्किन में असर आएगा। नागवायु ठीक करने के लिए हम स्पेशलाइज प्रैक्टिस देते हैं। जब लोग आते हैं, कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम अलग से प्रैक्टिस देते हैं। इसके अलावा जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था, देरी सा व्यान पक्ष जो कि प्रेशर मेंटेन करता है आपके शरीर का। तो स्किन का जो टिश्यूज है ना, उसका अगर प्रेशर मेंटेनिंग कैपेबिलिटी नहीं होगा तो वो फ्लेकी हो जाएगा, या ये कह लीजिए कि उसमें मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंशन होता है स्किन का, टोन होता है ना, वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से अगर उसको ठीक करेंगे तो स्किन का टोन ठीक हो जाए, कई बीमारी उसी से ठीक हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो एलोपैथी में स्किन डिजीज का इलाज ज्यादा नहीं है, एक्सेप्ट इन्फेक्शन। किसी स्किन डिजीज का इलाज नहीं है, सब में स्टेरॉइड देते हैं, लगाने का, खाने का, सब में देते हैं। तो अगर नागवायु को हम ठीक कर दें, व्यान फैक्टर को अगर करेक्ट कर दें, तो बहुत सारे स्किन इश्यूज आराम से निकल जाएंगे। कॉस्मेटिक बात नहीं कर रहा, रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। कॉस्मेटिक बात नहीं कर रहा, रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। इश्यूज खत्म हो जाए, डीकलरेशन, कलर ऐसा वैसा, वो कॉस्मेटिक इशू। बहुत लोगों का कॉस्मेटिक इशू भी हल हो जाएगा, मगर प्रॉब्लम चली जाए, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा। सर मेरा प्रॉब्लम एक है, मैं 2 साल पहले मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई, तो मुझे वहां पर कैश आ गया। मैं पीछे झुकी तो मुझे पीछे कमर में पता नहीं ये लगा, मुझे कुछ हो गया अंदर से। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि ये आपका नर्व ये दब गया है। तो फिर उन्होंने मुझे क्या, फिर बाद में मैंने ट्रीटमेंट लिया तो मुझे उससे खास फर्क कुछ नहीं आया। अभी क्या है, 2 साल के बाद अभी मुझे शूटिंग पेन आ रहा है,
कमर से ये लोअर बैक पेन लेफ्ट साइड से पूरा टांग तक नीचे तक आ जाता है। देखिए और अभी एक घुटना भी पूरा पकड़ लिया है। देखो, पहली बात तो आपने कोई इलाज तो किया नहीं। जब आपके हाँ जी, हाँ जी। हड्डियों के बीच में कोई नस दब रही है, यानी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, आपको बॉडी यस को सर। अलाइन कर, गाड़ी को जब आप ले जाते हैं ऊबड़ खाबड़ जगह में तो उसका व्हील अलाइनमेंट करते हो, मगर अपना बॉडी का तो अलाइनमेंट करते ही नहीं आप। तो अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो नस इधर दबेगी, उधर दबेगी, खिंचेगी, कुछ होगा, ये होगा, फिर वो ठीक होगी नहीं, क्योंकि हाँ, आपने वही अलाइनमेंट। मसल प्रॉब्लम भी है प्रोग्राम में पीछे। हाँ हम जी। अलाइनमेंट हैं, प्रोग्राम में 3 तरीके के अलाइनमेंट हैं आपके बॉडी के लिए। नाभि, कौड़ी, नले, ये 3 अलाइनमेंट आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अलाइनमेंट करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। और उसके अलावा देखो, नस दब रही है तो आपको अलाइनमेंट कर लीजिए, खुल जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ अभी ये ये नहीं, और अभी क्या है क्वेश्चन ले पाएंगे? अभी और अभी क्वेश्चन नहीं, डॉक्टर मैंने साहब क्या बता है, दिया पेन आपको। देखो, डॉक्टर ने पेन कुछ भी, बहुत। हाँ वही पेन 2 साल पहले किया था, तो उस टाइम वो लॉकडाउन था तो इसके लिए नहीं कर पाए कुछ। तो रात को क्या होता था, रात को सोती थी तो करवट बदलती थी तो बहुत पेन होता था। सुबह उठ के वापस मैं काम सब करती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर अभी 2 साल के बाद मुझे इतना शूटिंग पेन आ रहा है, पूरा कमर से पूरा टांग तक आता है और घुटना भी पूरा पकड़ लिया है। ये तो आपने पैर में प्रॉब्लम भी बता दर्द है। दिया ना, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर। अलाइनमेंट करना पड़ेगा, सोल्यूशन बताओ। आप प्रॉब्लम कितना भी बता दो, वो सॉल्व नहीं होगा। आप मेरे साथ ओके में ओके प्रॉब्लम शेयर करो, किसी के साथ में प्रॉब्लम शेयर करो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ओके सोल्यूशन ओके सर। कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग जो है तो वो इसके व्हाट्सएप ग्रुप में और चैट में भी अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, मैं ही आंसर करता हूँ, इट गोज फ्रॉम मी ओनली, डोंट वरी। यस और यस। जो भी सवाल है वो डाल दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए, द आंसर विल रीच यू, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर। गुरुजी, मेरा एक सवाल था। स्वामी जी बहुत People who छोटा have सवाल है। people whose question have not been answered, we are very sorry for that because Swami ji has another webinar to attend. तो आप लोग प्लीज अपना क्वेश्चंस वेबिनार ग्रुप में लिख डालिए, we will take it up with him and get back to you. Thank you so much. Good night. Stay well. Stay happy. थैंक यू।